Hallelujah, come on church. Amen. आप जानते हैं ये जब हम अभी आराधना कर रहे थे, I just felt like कि मैं एक विक्ट्री मार्च को सुन रहा हूँ. Amen. बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया, तो वो पुराने समय में जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जीतता था तो उसको बंदी बनाकर बांधकर उसको लेकर वापस आया जाता था. Where Bible says Jesus made an open show of principalities and powers. So I don't know about others. मैं औरों के विषय तो नहीं जानता, but that should be the image of devil for you. He is bound and rendered powerless against you and your family. वो बंधा हुआ है, वो हारा हुआ है, उसकी शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह तबाह कर दी है. He is disarmed and he is defeated. Amen. और जो राजा जो जीतता था, उसकी जो प्रजा होती थी, his people, they used to dance. So there is a victorious king. I want you to imagine this scene. मैं चाहता हूं इस बात की कल्पना करो. There is a victorious king, एक जयवंत राजा है. There is a defeated king. And the victorious king, his kingdom, his people are dancing and rejoicing, and we call it a victory march. हम उसको एक victorious march कहते हैं. The church has given for long a very wrong image of devil. He's too big, he's too powerful. No, my Bible says my Lord Jesus Christ spoiled principalities and powers and made an open show of them. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया. Hallelujah! Our King is victorious. अगर हमारा राजा जयवंत है, तो हम हारे हुए कैसे हो सकते हैं? How can you belong to a kingdom in which the king is victorious and you live a defeated life? That's not possible. Amen. So before we go into the word, आज हम वचन में जाएं इससे पहले, I want you to ask Holy Spirit to give you this picture of an overcomer. Amen. We are not overcomers in our own strength. हम लोग जयवंत अपने बल में नहीं. Not according to our talent, not according to our holiness, and not according to our godliness. But we are conquerors through Him, the Bible says. वचन कहता है उस जयवंत मसीह के द्वारा आप और मैं भी जयवंत हैं. Amen. अभी लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे. There can be a striker who can strike a goal, but the victory is enjoyed by the entire team. एक व्यक्ति गोल करता है, मगर जय पूरी टीम को मिलती है. We are on the winning side. I said we are on the winning side. हम जयवंत टीम में हैं. Hallelujah. So no matter what you're going through, यही शैतान चाहता है. That's what devil wants. That's why he's called the father of lies. He wants to convince you that he's too big for you. वो आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो बहुत बड़ा है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है. He is a toothless serpent. आप जानते हैं सांप का जो जहर होता है वो कहाँ पे होता है? फैंग्स, you know, उसके दो दांत जो होते हैं उसमें होता है. तो अगर उसके दांत तोड़ दिए तो फिर क्या होता है? फिर अगर वो काटेगा आपको तो आपको मसाज लगेगी. Jesus said, the prince of this world is coming and he has nothing in me. Amen. Not only our risen savior, केवल हमारा जयवंत राजा नहीं. In fact, the Bible says, if we are living a life that is submitted to God, अगर हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पण है, first condition, if your life is submitted to God, अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण है, not perfection, because nobody is, not perfection but submission. Say not perfection but submission. God is not demanding perfection, but He is asking for submission. अगर आपका जीवन परमेश्वर को समर्पण है, then the word of God says that you, say me? Yes, the Bible says you will resist the devil and he will flee away from you. Not only from Jesus, from you. आपसे भागेगा. And if you do a study of this word, he will flee away. See, the Greek is very rich, Hebrew is rich. यूनानी में इसका जो मतलब है, he will run away in terror. Devil will run away in terror from a victorious believer. Okay? बहुत साल तक आपने आंसू बहाए हैं, अब जय की ललकार लगाने के लिए तैयार हो जाओ.
जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो चंगाइयाँ होने लगी, तो somebody sent me a message, किसी ने मुझे मैसेज भेजा, oh your ministry is going through a season of healing. And I tried to search it in the entire Bible, but I didn't find a verse where Jesus said, my followers will heal in a season. I want you to come out of this season-based Christianity. Victory is not for a season. His victory is everlasting. I said his victory is everlasting. And in his victory is your victory. In his overcoming is your overcoming. Hallelujah. So, मेरा तो बहुत मन है आज दबा के डांस करने का. Amen? People send me comments. Are you guys crazy? Yes. We are more than what you think. Okay. Let me tell you, it is, many people don't understand dance is spiritual. Did you hear what I just said? Dance is spiritual. I said dance is spiritual. लोगों को ये नहीं पता. People think only prayer is spiritual. Dance. There is a time to pray and there is a time to dance. And you should know when you're led by the Spirit. Today is the day to dance. Because I'm telling you, what I feel in my spirit, many of you are coming out of your court cases victorious in Jesus' name. Many of you, your reports are changing in the name of Jesus. Many stories are being changed in this place in the mighty name of Jesus. Okay? So, quickly मैं आपको बताऊंगा, maybe एक दिन मैं आपको इसमें teaching दूंगा. Do you know there are dances? Do you know that witch doctors dance? You don't know that. आप जानते हैं जादू टोना वाले करने वाले भी डांस करते हैं. Why do you think people who are getting drunk in pub are dancing? A spiritual transaction is happening. People don't know it. It's not just mere enjoyment. लोग शराब पी के pubs में, bars में नाचते हैं. एक आत्मिक अदला बदली हो रही है. There's a transaction happening. But when we, the people of God, we don't need alcohol to rejoice. In His presence is the fullness of joy. And at His right hand are pleasures forevermore. Amen? Let me tell you, I have personally seen this. जब आप एक ऐसे क्रॉस रोड में हो, जब आप एक ऐसी जगह हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, shut your door and dance in your room. एक बुरी परिस्थिति में केवल एक वो व्यक्ति आनंद मना सकता है जो विश्वास को समझता है. In the time of trouble, only a person who understands faith can rejoice. Amen? And when you rejoice, heaven notices. Angels are dispatched on your behalf. There are things the Lord does behind the scenes. That's why, do you know, many people think, many sophisticated Christians think, why are these people shouting? We are shouting because our God has commanded us to shout. Do you know shouting is a command in God's presence? He says, shout, make a joyful shout, make a joyful noise. Amen? I have to teach you something, otherwise I would have gone to this place. Anyway, दुनिया अच्छी खबर सुनकर डांस करती है, क्योंकि हम डांस करते हैं अच्छी खबर आती है. We are rejoicing because we know what God is about to do for you and for me. Hallelujah. Hallelujah. Oh, if only you would know what is about to happen to you, you would rejoice. And what God says many times sounds illogical. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो हमारे शारीरिक मनुष्य को वो अजीब लगता है. Think about this. Devil cannot create anything. He can only counterfeit what God has done. शैतान बना नहीं सकता, केवल कॉपी करता है. He's a cheap copycat. बाइबल बताती है पुराने नियम में जो वाचा का संदूक था, the ark of the covenant used to represent the manifest presence of God. जो पुराने नियम में वाचा का संदूक था वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था. और वचन कहता है दाऊद आत्मा में झूम कर नाचने लगा, और जहां जहां दाऊद जाता वाचा का संदूक उसके पीछे पीछे जाता. Somehow God is so drawn to your dance. Amen. We don't dance to show people our moves. The Father who sees in secret your hidden moves will stand strong on your behalf. Amen. So आज मैं चाहता हूं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचो. See, let me tell you one thing. What the church has lost. The church has lost the art of coming together, believing for impossible.
We come expecting a nice sermon, and that's what we get. But people in the old times, पुराने समय में लोग एक अच्छे संदेश के लिए नहीं, उन्हें पता था कि जब परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी, असंभव संभव हो जाएगा. So मैं चाहता हूं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचो जो असंभव है. It can be your son has autism and doctor said he will never be healed. It can be a cancer report. It can be a financial turmoil. It can be a relationship problem. You're on the verge of getting divorced. But today, आज आप आनंदित हो गए ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, वो सामर्थ्य है. There is no situation that my God cannot turn around in a twinkling of an eye. What seems impossible to man, God says, watch me how I'm going to transform your situation. And I'm going to make a way where you think there is no way. Amen? So I think let's have the same song. कितने लोग rejoice करने लेते? When you rejoice, when you dance, you are showing faith in your heavenly Father. आप विश्वास को प्रकट कर रहे हो अपने स्वर्गीय पिता पर, और साथ में आप शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे हो. You're doing what Lord Jesus did. Victory march. Are you ready for the victory march, church? यीशु मसीह एक हारी हुई डरपोक कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा. Jesus is coming back to take a blameless, spotless, courageous and victorious bride. It's high time the church has a victory mindset. Amen? कई बारी लोग प्रकाशित वाक्य में एंटी क्राइस्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं. When the book says the revelation of Jesus Christ, that's the problem. Many people are so centered on negative. अगर डाउट हो तो आखिरी चैप्टर पढ़ लेना रेवलेशन का. We are already victorious. Amen? I said हम पहले से जीते हुए हैं. मैच फिक्स्ड है. मैंने कहा मैच फिक्स्ड है. अगर आपको पता हो कि आपकी साथ की जो टीम है आप ऑलरेडी जीते हुए हो, तो आप कैसे खेलोगे? Let me ask you a question. How would you live if you had no fear of defeat? कैसे जियोगे आप अगर डर का भय ना हो? How would you live? That's the way your Father wants you to live. ऐसे ही आपका पिता चाहता है आप जियो. There can be a delay, but there is no defeat. देरी हो सकती है, मसीह में देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती. हार नहीं हो सकती. Amen? There is no defeat. Hallelujah. So आदत डालो. मैं चाहता हूं कि अब जल्दी से वचन में जाएंगे, but I just want to flow. Okay. मैं चाहता हूं ध्यान पूर्वक जब वचन पढ़ते हो, I want you to carefully observe the life of Jesus. Do you think he lived a defeated life or he lived a victorious life? Do you think he had challenges? Yes. Challenges don't mean defeat. आपको चैलेंज हो सकता है, सताव हो सकता है, और होगा. प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी पे there will be tribulations. He said, but be off. He said, but you know what? Get a little sad. He said, be off. हिंदी में क्या लिखा है? मगर ढाढ़स बांधो. You should have a cheerful attitude. That means rejoicing in the time of adversity. Be of good cheer, for I have overcome the world. Amen? Well, there is no defeat for me. I am more than an overcomer in Christ Jesus. आप जानते हैं, मैं जब जाता हूं, मैं कई विश्वासियों से मिलता हूं. There are very few people I found which has a victorious mindset. जय की मानसिकता बहुत कम मसीहों में है. They are caught up to what they are suffering, what they are going through right now. अगर किसी पेंटिंग को आप बहुत पास से खड़े होकर देखोगे ना, you will not get the entire picture. You need to go some steps back. थोड़ा पीछे जाके you have to see the entire picture. कई लोग जो कर्जों में हैं इस समय पूरे दिमाग में कर्जे ही कर्जे हैं.
वो कर्जों की बातें करते हैं, सुबह उठते हैं तो कर्जों के बारे में सोचते हैं। कोई लोग जो बीमार हैं, दे आर कंज्यूम्ड विद देयर सिकनेस एंड दे आर नॉट एबल टू सी द बिगर पिक्चर। यू हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स बैक, थोड़ा कदम पीछे लाके सी द बिगर पिक्चर। जीसस सेड, बी ऑफ गुड चेयर फॉर आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मगर सवाल यह है, यीशु मसीह आपने जय पाली तो मैं क्या करूं? You overcame, what about me? And he wants to tell you, but I live in you now. एक दुनिया का सबसे बेहतरीन जो एथलीट है, स्विमर है, माइकल फेल्प्स, राइट? माइकल फेल्प्स। सोचो माइकल फेल्प्स किसी के अंदर रहने लग जाए, जस्ट एन एग्जांपल। माइकल फेल्प्स किसी के अंदर घुस जाए, क्या वो अच्छी स्विमिंग कर पाएगा? अगर सचिन तेंदुलकर किसी के अंदर आ जाए तो क्या वो अच्छी बैटिंग कर पाएगा? तो ये उदाहरण तो कुछ भी नहीं, मगर जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो आदि और अंत है, जो पहला और अंतिम है, whose name is victory, he now lives in you. Do you not think that he will teach you how to come out of every situation victorious? क्या आपको नहीं लगता अब वो आपको सिखाएगा हर परिस्थिति में तू कैसे जयवंत हो सकता है? The word of God says he leads us in triumph in all times, not sometimes, not in seasons. वो हमें मसीह के जय उत्सव में, the word there is victory celebration. आपने देखा कई शादियां कहीं होती है, वहां पे एक दिन का रिसेप्शन होता है। कई लोग हैं, मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, पर कई कल्चर्स हैं जहां पे हफ्ते हफ्ते सेलिब्रेशन होता है, हफ्ते भी होता है। जो मसीह की विक्ट्री है वो अब से लेकर अनंत तक हमारी लाइफ एक सेलिब्रेशन है। That means 100 years from now you will be celebrating his victory. अब से 100 साल बाद आप उसकी जय मना रहे होगे। 1000 years from now you will be celebrating his victory. 1000 साल अब से आप उसकी जय मना रहे होगे। 1,000,000 years from now you will be celebrating his victory. 1,000,000,000 years from now you will be celebrating his victory. बोलो, अब तो जय उत्सव ही जय उत्सव है। Your sufferings are temporary. The celebration is eternal. The devil wants you to focus on what you're going through right now. शैतान चाहता है आपका पूरा ध्यान उस जगह पे डाले जो आप जिसके थ्रू अभी जा रहे हो। God wants you. Apostle Paul says these light afflictions are nothing compared to the glory that will be manifested in. ये थोड़े समय के दुख, बोलो थोड़े समय के, पार्टी है अनंत तक, दुख है बहुत थोड़े समय के। You need to focus on the right place, at the right thing. Amen? Celebration is not something we do. Celebration is something we are. We have been invited into this feast, this marriage feast. Amen? और ये celebration अब कभी बंद नहीं होगा। तो आदत डाल लो। कुछ मसीह लोग, they don't know how to celebrate. They get uncomfortable when people are dancing around it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You need to shake yourself. Amen? यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम छोटे बच्चों की तरह नहीं बदल जाओगे, तुम मेरे राज्य की सच्चाइयों को नहीं देख सकते। Until you are transformed like little children, the heaven's realities will be shut up from you because you don't know heaven by reading books. स्वर्ग किताबें पढ़ के नहीं उसकी सच्चाई पता चलती। You have to become like little children. छोटे बच्चों की तरह जिस दिन बन जाओगे, the revelation will open up. Amen? Anyway, आज का वचन भी जरूरी है देना। कितने लोग अपना हथियार लेकर आए हैं? उठा लें उसे। जो लोग नहीं लाए हैं अगले हफ्ते ले आए। Amen? Okay. और अब हम घोषणाएं करेंगे वचन से पहले। रेडी? और कैसे घोषणा करनी है कि आपके शरीर का एक एक सेल घोषणा करे। आमीन? ओके, मेरे पीछे बोलो। मैं घोषणा करता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन का पूरे दिल से आदर करूंगा। मैं हर एक विचार, परंपरा और भावना और अनुभव से बढ़कर परमेश्वर के वचन को
अपने जीवन का सर्वोच्च अधिकार मानूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हृदय उत्तम भूमि है। मैं परमेश्वर के वचन को नम्रता, विश्वास और बड़ी भूख के साथ ग्रहण करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे समझ की आंखों को खोल रहा है। मेरा कान वचन सुनने के लिए खुला है। मेरा हृदय वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है और मेरा मन परमेश्वर के सत्य से नया किया जाता है। मैं घोषणा करता हूं कि आज परमेश्वर ने जो भी वचन विशेष रूप से मेरे लिए तैयार किया है, उसका एक भी शब्द मैं नहीं चूकूंगा। प्रत्येक वचन जो आज परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है, वह मेरे जीवन में प्रवेश करेगा और अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि शैतान मेरे हृदय में बोए गए परमेश्वर के वचन को नहीं चुरा पाएगा। मेरा ध्यान भटकाने, मुझे धोखा देने, मेरे हृदय को कठोर बनाने या वचन को मुझसे छीन लेने की उसकी हर योजना आज यीशु के सामर्थी नाम में निष्फल हो जाती है। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में गहरी जड़ पकड़ता है और 30, 60 और 100 गुना फल उत्पन्न करता है। मैं घोषणा करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं और जब यह वचन आज मेरे हृदय में प्रवेश करेगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरे जीवन के द्वारा मेरे परमेश्वर की महान महिमा होती है। यीशु के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। आमेन। करिए अब। नाउ यू हैव टू हियर द वर्ड लाइक दैट। आमेन। ओके। सो आज तीसरा भाग है, हम लोग गलातियों की पुस्तक से सीख रहे हैं, द बुक ऑफ गैलेशियंस। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया, उसके पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया कि सुसमाचार क्या है। कम ऑन टॉक टू मी। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? इफ गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड, अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, जो वो है, तो इसका मतलब अगर मुझे सुसमाचार नहीं समझ में आता तो मैं उसकी सामर्थ से भी के बिना अपना जीवन जीऊंगा। एंड ऑल आई विल डू इज आई बेग। इसीलिए पौलुस प्रेरित की हम ये जर्नी को देख रहे हैं और हम इतना कुछ सीख रहे हैं। हाउ ही जेलसली गार्डेड द गॉस्पेल, कैसे उसने जलन से इस सुसमाचार को क्या किया, इसकी रक्षा करी कि ताकि इसमें क्या ना हो जाए, इसमें मिलावट ना हो जाए। क्योंकि कुछ लोग, सम जुडाइजर्स केम टू डाइल्यूट, नॉट डाइल्यूट बट टू डिफाइल द गॉस्पेल। कुछ यहूदी मत वाले सुसमाचार को क्या करने आ गए थे? मिलावट करने के लिए, उसको खराब करने के लिए आ गए थे। और पौलुस उस याद को रखता था कि यरूशलेम में जो काउंसिल थी प्रेरितों की, दोज ऑफ रेपुटेशन, जो बहुत माने जाते थे, मगर उनके सामने भी वो याद से खड़ा रहा। आमेन। और इससे हम एक चीज सीखते हैं कि हमें भी सुसमाचार को क्या करने की जरूरत है? अपने हृदय से। डोंट अलाउ मिक्सचर टू एंटर इनटू द गॉस्पेल दैट यू हैव रिसीव्ड। अब आप देखोगे हर 6 महीने में एक नई टीचिंग आती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब बोलते नहीं, आपको कोर्ट ऑफ हेवन में जाना पड़ेगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टीचिंग, बट आई एम सेइंग इज यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस विल नेवर बी इनफ। वरना यीशु का बलिदान काफी नहीं होगा। अब ऐसा लगता है कि जो यीशु ने किया पूरा नहीं था, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्वर्ग की कचहरी में जाकर खड़ा होना पड़ेगा, आपको पिता से मांगना पड़ेगा अपने पापों की क्षमा। और इसी के लिए पौलुस ने क्या किया? उस लड़ाई को लड़ा। और आज इसीलिए गैलेशियंस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स बिकॉज़ इट टॉक्स अबाउट द प्योरिटी ऑफ द गॉस्पेल। वो पवित्रता, शुद्धता की बात करती है सुसमाचार की। क्योंकि अगर आप सुसमाचार में स्थापित नहीं हो, कोई भी आकर उसमें मिलावट मिला देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। इफ यू डोंट नो द रियल गॉस्पेल, हाउ वुड यू नो इफ समबडी कम्स एंड एड्स टू इट? अगर आपको नहीं पता कि असली सुसमाचार क्या है, आपको नहीं पता चलेगा, कोई आकर उसमें क्या कर देगा, अगर मिलावट कर देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। एंड इट्स द स्मॉल फॉक्सेस दैट स्पॉइल द क्रॉप। छोटी लोमड़ियां हैं, वचन कहता है। इट्स नॉट बिग थिंग्स, इट्स द स्मॉल थिंग्स। क्यों आज भी इतने मसीह लोग बंधन में जी रहे हैं? क्यों आज दिस वे? आप जानते हैं जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे प्रेरितों के कार्य में, दे वर नोन एज द वे। आई लव दिस वर्ड मच बेटर देन क्रिश्चियंस बिकॉज़ द वर्ड क्रिश्चियन हैज बीन डाइल्यूटेड सो मच। वो जो मार्ग के लोग थे, द पीपल ऑफ द वे। आज क्यों ऐसा है कि इट हैज जस्ट बिकम अनदर रिलीजन? क्रिश्चियनिटी इज क्लासिफाइड एज अनदर रिलीजन। आज मसीहत भी एक और धर्म बन गया और इससे ज्यादा दुख की और कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु धर्म के बंधन से ही तो हमें छुड़ाने के लिए आया था। He came to set us free from the religious system, the old Mosaic religious system। और यही गलातियों ने गलती करी
The believers in the churches of Galatia, जो विश्वासी गलातियों की कलीसियाओं में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही गलती करी, और गलती क्या थी? कि वो विश्वास करने लग गए उन लोगों पर जो आकर सुसमाचार में मिलावट मिलाने लगे कि मसीह, केवल मसीह के विश्वास करने से तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे। नहीं, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, तुम्हें सारे पर्व भी मानने पड़ेंगे, तुम्हें मूसा की रीति रिवाज में चलना पड़ेगा। हाँ, यीशु पर विश्वास करते हो वो तो अच्छी बात है, मगर उसके साथ फलाना 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 ये चीज भी करनी पड़ेगी, तब ही तुम बचाए जाओगे। नाउ द इंटेग्रिटी ऑफ द गॉस्पेल वाज एट स्टेक। अब सुसमाचार की जो खराई है वो खतरे में थी, इसलिए पौलुस को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। आमेन। कितने लोग पिछले संडे थे यहाँ पे? ओके, कितने लोग कुछ सीख रहे हैं? एंड पॉल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस लेटर। एक झूठ काफी है, एक झूठ काफी है किसी को पूरी जिंदगी बंधन में डालने के लिए। मैं आपको बता रहा था, हमने कलीसिया में एक बारी हम मीटिंग कर रहे थे, जब केवल 200 लोग होते थे, और वहां पे एक प्रचारक आया, उन्होंने खड़े होकर बोला हर किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं। अब ये सुनने में एक नॉर्मल सी बात लगी, मगर ये छोटी छोटी चीजें अगर आप गार्ड नहीं करेंगे आज, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने उनसे माइक ले लिया, मैंने कहा हमें नहीं है, और भी मैंने कुछ कहा था, यहां कहने की जरूरत नहीं, मगर मैंने कहा हमारे अंदर मसीह रहता है। Jesus is not sharing his room with a demon. You are not the temple of the Holy Spirit and a demon. You are the temple of the Holy Spirit, period. Amen? Yes, believers can be oppressed. For sure they can be. हाँ, विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा के प्रभाव में आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं. They cannot be. They cannot be demon possessed. They cannot be. Do you know that Jesus never ministered to a born again believer? Hello? यीशु ने जिससे भी दुष्ट आत्माएं निकाली, एक भी व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं था. And it was not normal. Why do you think so many Christians are in bondage today? क्यों आपको लगता है इतने विश्वासी? Because what they have heard and what they have believed. That's what devil wants, to make you believe that you have a demon. And that's what the word of God wants you to believe, that you have his spirit living in you. Whose voice will you believe? Because what you believe is what you will experience. आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे वचन में चलूंगा. जब मैं नया प्रभु में आया था, उससे पहले बहुत, अब कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा शरारती हमने काम किया स्कूल में. मेरा एक दोस्त है जो हम उसके घर जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करते, तो रात को नाइट स्टे किया उसके घर में, छत में, देहरादून में, उसके घर में हम लोग रुके. हम टेलिंग रियल स्टोरी. और उसके छत में हम लोग वहाँ पे रुके. तो मेरा फ्रेंड था, मैं था, मेरा कज़न था और उसका एक दोस्त था. और रात को रुकते हुए जो मेरा दोस्त है उसने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ सोने के लिए, और एक और जो मेरा दोस्त था, दो दोस्त थे मेरे. तो मैंने आंखों में हम लोगों ने समझ लिया और हमने एक कहानी बना दी थापा की. किसी कहानी बनाई? थापा वहाँ पे एक व्यक्ति था जो असली उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसका मर्डर हो गया था उस जगह में. तो उस टाइम नए थे प्रभु में, ऑब्वियसली इतनी हमें समझ नहीं करना चाहिए था. जो मैं बता रहा हूँ करना मत कोई. मैं आपको केवल कहानी बता रहा हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना पावरफुल है जो आप बिलीव करते हो, और जब एक झूठ को मान लेते हो तो उसका क्या रिजल्ट आपकी लाइफ में होता है. तो मैंने अपने दोस्त को बोला, अरे वो मैंने सुना यहाँ पे थापा आता है. तो उसने कहा, वो भी समझ गया, वो कह हाँ थापा तो आता है रात को, और थापा अपना सर पकड़ के आता है ऐसे. हम कह रहे थापा अपना सर ऐसे पकड़ के आता है. तो मेरा जो कज़न था वो कह रहा फेक रहे हो तुम दोनों. हमने कहा नहीं भाई फेक नहीं रहे, देखो जिसका घर था वो बंदा चला गया नीचे सोने, क्योंकि उसे पता है रात को थापा आता है. तो जो मेरा कज़न वगैरह रहे थे, अब उसके साथ जो बंदा था ना वो थोड़ा डरपोक था, तो वो डरने लगा. अब रात को जैसे हम लेटे हैं तो करीबन 1:30 बजे करीब बगल में एक लीची का पेड़ था, उसमें आवाज़ गया, बिल्ली गई या बंदर गया, जो गया, मगर आवाज़ आई. समझ ये क्या हो गया? मेरे दोस्त थापा आ गया. अब ये बोला थापा आ गया, और हम लोग बिल्कुल सीरियस है, मतलब बिल्कुल प्ले में आ चुके हैं कि थापा है, और पास में और साइड, और वो सबसे साइड में था, उधर अंधेरा पेड़. तो मेरे कज़न को बोल गया, भैया मुझे यहाँ पे नहीं रहना, भैया मुझे साइड में, मुझे बीच में आना है. मेरे कज़न को भी डर लग रही थी, उसने उसको बीच में आने नहीं दिया. थोड़ी देर में ये जो व्यक्ति जो है ना, ये वॉमिट करने लगा, फियर, वॉमिट करने लगा. उसके मेरी तबियत खराब हो रही है, मेरी तबियत खराब हो रही है. नाउ टेल मी वन थिंग, क्या वो एक्टिंग कर रहा था वॉमिटिंग करने की, या वो सच में उसको वॉमिटिंग हो रही थी? आर यू श्योर? मगर क्या वो रीजन जिसकी वजह से वो वॉमिट कर रहा था वो सच था या वो झूठ था? सो जस्ट बिकॉज समबडी हैज एन एक्सपीरियंस, इट डज नॉट वैलिडेट व्हाट दे बिलीव. केवल क्योंकि किसी का अनुभव है, इसका मतलब ये नहीं कि जिस चीज पे विश्वास कर रहे हैं वो सही है. क्योंकि गलत बात पर विश्वास करके अनुभव सही हो सकता है, सच्चा हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं जिस बात पे उन्होंने विश्वास किया वो सही है. सो अचानक जब हमने देखा कि इसकी तबियत बहुत खराब होने लगी, तो हमें बताना पड़ा, अरे भाई हम मजाक कर रहे हैं. वो माना ही नहीं पहले बहुत समय तक, तो हमें उसको बताना पड़ा कोई थापा नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, गड़ी हुई कहानी है, ये कहानी थी, तब जाके वो नॉर्मल हुआ. आपको क्या लगता है कि क्या होता अगर हम और बढ़ाते तो? आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन. आज लोग कहते हैं अच्छा अगर ऐसे नहीं है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. कई लोग ऐसे हैं, आप आराधना में जाएंगे, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, यस दे आर डिमोनाइज्ड. एंड मेरी सेवकाई स्टार्टिंग में अगर आप पूछे मेरे लीडर से, माय मिनिस्ट्री वाज टू कास्ट आउट डीमंस. आई हैव कास्टेड थाउजेंड्स ऑफ डीमंस इन द फर्स्ट 10 years ऑफ माय मिनिस्ट्री. सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट. हाँ, जो लोग बाहर से आते हैं, मगर जो मसीह में आ चुके हैं, जो उसके लहू से धुल चुके हैं, जो उसकी आत्मा से भर चुके हैं, क्या पवित्र आत्मा का मंदिर इतना छोटा है कि कोई तुच्छ सी दुष्ट आत्मा उसका ड्रामा बनाएगी? कई विश्वासियों से मिला, वो कहते हैं आपको नहीं पता, जैसे ही मैं बैठता हूं जहां आराधना होती है मुझे उल्टी आने लग जाती है, क्योंकि मेरे अंदर एक दुष्ट आत्मा है. मैंने कहा ऐसी कौन सी महान दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती नहीं है? फिर तो यीशु मसीह को छोड़कर उस दुष्ट आत्मा की आराधना करते हैं. Come on, I want to talk as it is. अगर कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है जिसे मेरा यीशु नहीं निकाल सकता, तो इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा यीशु से ज्यादा महान है, और ऐसी कोई दुष्ट आत्मा है नहीं. It's the wrong believing that is bringing an experience, and they are trying to validate their wrong believing by their experience, and it does not happen like that. You cannot validate a belief system because what you are experiencing. आप अपने अनुभव के द्वारा जिस बात पर आप विश्वास करते हो, आप उसको सही प्रमाणित नहीं कर सकते. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो उन यहूदियों से बोल रहा था जो पहले से विश्वास कर चुके थे.
In John 8:31, Jesus said, he spoke to the Jews who were believers. And he said, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. अब तुम विश्वासी तो बन चुके हो, तुम believers तो हो गए हो. तुम पहले यहूदी थे, कुछ तुम में से पंजाबी थे, मद्रासी थे, कुछ राजपूत थे, कुछ नेपाली थे, कुछ बंगाली थे, whatever you are. अब तुम यीशु में आ गए और तुम विश्वासी तो बन गए हो, मगर अब तुम्हें मेरे वचन में बने रहना पड़ेगा. तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, और जब मेरे चेले ठहरोगे, तब मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, और जिस सत्य को तुम जानोगे, वो तुम्हें हर बंधुआई से आजाद कर देगा. You don't need another goosebump. You don't need another deliverance. You don't need another fire. You don't need any of those experiences. You need the truth of God's word. तुम्हें और अनुभव नहीं, वचन का सत्य चाहिए. That will bring you lasting deliverance. Amen. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो और किसको सुनते हो. Because what you continually hear is defining your belief system and your life. जो भी बोलो, एक्सपेरिमेंट करने का मन तो करता है. मैं अगर एसी ऑन कर दूं अपने कमरे में 18 डिग्री कर दूं और मैं बोलूं दिल्ली में तो टेंपरेचर 18 डिग्री है, तो बोले नहीं हो सकता. अरे मेरे घर आके देखो 18 डिग्री दिल्ली का टेंपरेचर. व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग पर्सनली डज नॉट मीन इट माइट बी द ट्रूथ. जरूरी नहीं हो सत्य हो. सो आई डोंट जज द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. आई जज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू द ट्रूथ. मैं जो अनुभव कर रहा हूं उससे मैं सत्य को नहीं परखता, मैं सत्य से अपने अनुभव को परखता हूं. आमीन. जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे एक परमेश्वर के दास ने बोला कि भाई अब तुम सेवकाई में आओ, अब परमेश्वर तुम्हें बड़ी गरीबी से लेकर जाएगा. What was he preaching from? His experience. That was his reality. बोला आपको खाने के पैसे नहीं होंगे, आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं होगा, उस समय में परमेश्वर आपको सिखाएगा. मगर जब मैं घर गया और मैं वचन पढ़ा था और मैंने भजन संहिता 23 खोला, उसमें लिखा था क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी. And it started to contradict with what I heard. अब ये एक दो बातें हैं, लड़ाई चल रही है. वचन क्या कह रहा है और एक व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा. और मैंने कहा प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करूंगा. I rather than tradition, I will trust your written word. Amen. और इस सेवकाई में ना तो आज तक कमी घटी हुई है ना कभी होगी. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, आज जस्ट टू गिव ग्लोरी टू गॉड विदाउट एनी सपोर्ट. हमारे पास एफसीआरए नहीं है, इसलिए आज हमें डर नहीं है. हम गवर्नमेंट को कहते हैं आओ ऑडिट करो, आज पुलपिट से कह रहा हूं करो ऑडिट हमारी बुक्स, वी डोंट हैव एफसीआरए. और आज इस सेवकाई में केवल खाना महीने का हम 30 से 40 लाख रुपए का खिलाते हैं. जस्ट द फूड. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. हु इज फॉर्मिंग योर बिलीफ सिस्टम? व्हिच वॉइसेस आर यू अलाउइंग? कौन सी आवाजें सुन रहे हो? आपके घर का बिजली का बिल कौन भरता है? कम ऑन टॉक टू मी. आपके घर का बिजली का बिल कौन भरता है? आप भरते हो? पक्की बात. पड़ोसी को तो नहीं देते? आप क्यों भरते हो अपने घर का बिल? तो ये जिसका घर है सारे बिल वही भरता है. एंड माय गॉड इज नॉट अ डिफॉल्टर इन पेमेंट्स. आज तक कोविड आया, कुछ भी आया, हमने अपने स्टाफ की आज तक ना एक सैलरी काटी, ना आज तक इस मिनिस्ट्री में एक भी पेमेंट लेट हुई है आज तक. क्योंकि जिसका घर है बिल भी वही देगा. ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस मिनिस्ट्री. दैट इज माय बिलीफ. सो आई एम रीपिंग द फ्रूट अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ. Amen? कई लोग ऐसे हैं. ऐसा तो नहीं होता. आई एग्री विद यू, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं होगा. मगर जो विश्वास करेगा और कर रहा है, और जो हजारों और लाखों गवाहियां हमें इंडिया से इंडिया के बाहर मिल रही हैं. आप गवाहियां देखते हो, मैं जो दिखा रहे हैं हम लोगों तो 2% 3% है, क्योंकि अगर गवाहियां दिखाने आएंगे तो संडे सर्विस नहीं कर सकते हम, फिर गवाहियां ही चलेंगी यहाँ. प्रभु इतने काम कर रहा है. मगर आपको बताना चाहते हैं, इफ यू ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड, इट विल नॉट फेल. परमेश्वर का वचन फेल नहीं हो सकता. परमेश्वर का वचन फेल नहीं हो सकता. हालेलुया. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफिसियों 3:20 में लिखा है. ओके, आई हैव टू गो टू गैलेशियंस, बट क्विकली यहां से 3:20 में लिखा है. एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हो, क्या वो सब कुछ कर सकता है? कर सकता है? मेरा सवाल है, करता क्यों नहीं आपके लिए? अगर सब कुछ कर सकता है तो करता क्यों नहीं? क्या करना नहीं चाहता? हाँ, चाहता है तो करता क्यों नहीं? अगर करना कर भी सकता है और करना भी चाहता है तो करता क्यों नहीं है? हमारे केजरीवाल जी ने कहा, look at this verse, it will tell you why. Just because God has ability and God is willing does not mean it will happen for you. Hello? केवल क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ है और वो कर सकता है और करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा. God is able to do exceedingly abundantly more than we ask, think or imagine. परमेश्वर तो कर सकता है, जो भी आपकी जरूरत है आज, उससे ट्रिलियन टाइम्स इन टू द पावर ट्रिलियन परमेश्वर के पास सामर्थ है. और केवल सामर्थ्य नहीं है, उसका मन भी है करने का. दो तरह के लोग हैं. हाँ, आप दो तरह के लोगों को देखोगे इस पृथ्वी पे. एक जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो ज्यादातर आपके दोस्त होते हैं या आपका कोई मित्र होता है जो कहता है अगर मेरे पास पैसे होते ना आज, या माँ, मेरे पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलाई थी 8 साल तक, मम्मी कहती अगर बेटा मेरे पास पैसे होते तेरे को बाइक में बहुत जल्दी दे देती. मगर उनके पास क्या था? मन तो था मगर सामर्थ नहीं थी करने की. कई ऐसे मित्र हैं आपके जो बहुत इच्छा रखते हैं आपके लिए, कहते हैं जिस दिन मेरे को कुछ मिला ना सबसे पहले तेरा कर्जा हटाऊंगा. मन तो बहुत है मगर सामर्थ नहीं. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सामर्थ तो बहुत है मगर
मन नहीं है। मगर परमेश्वर इन दोनों से अलग है, उसके पास सामर्थ्य भी है और मन भी है। मगर सवाल ये आता है फिर करता क्यों नहीं है? और ये आयत हमें बताती है, नाउ टू हिम हू इज एबल टू डू एक्सीडिंगली abundantly above all that we ask or think, but it happens according to the power that works in us, not in the power in heaven, not in the power that God has, the power that works in us. ये उस सामर्थ के अनुसार होता है जो सामर्थ, आप सोचो आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर एक लगा है जिसमें 1,00,000 किलो वोल्ट की बिजली है और उसमें इतनी बिजली है कि पूरे मोहल्ले को लाइट आ सकती है। मगर आपके घर में जो आपने तार लगाई तो आपने कहा वेंडर को थोड़ा सस्ती लगाना और उसने बहुत ही सस्ती लगा दी। अब ट्रांसफार्मर में तो 1,00,000 किलोवाट बिजली है मगर आपकी जो तार है वो 100 वाट में जल जाती है, तो क्या ले पाओगे आप 1,00,000 किलोवाट? No, because the power to sustain. But when you will develop the power that works in you, जब आप उस क्षमता को बनाने लग जाओगे जो आपके अंदर कार्य करता है, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में अपने आप कार्य करने लग जाएगी। Amen? And what is the power that works in you? Faith, the power to believe. And how does faith come? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? वचन में मतलब ये नहीं कुछ भी, रेमा वर्ड, वर्ड ऑफ क्राइस्ट। बहुत ध्यान, मेरे एक दोस्त हैं जो प्रभु के दास हैं, उनकी माँ को कैंसर हुआ, तो उन्होंने कहा मैं वचन, उनकी माँ ने कहा मैं ना वचन पढ़ना शुरू करूंगी, तो उन्होंने पुराने नियम में गई, उसमें लिखा था जितनी बीमारियां मैंने मिस्रियों पे डाली तुझ पे नहीं डालूंगा जब तू इन आज्ञाओं को मानेगा। व्हाट हैपेंड? शी गॉट सो कन्विंस्ड कि परमेश्वर ने बीमारी मेरे ऊपर डाली एंड शी डाइड इन हर सिकनेस। ध्यान धरो क्या सुनते हो। आमेन? आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या विश्वास करते हो? जोब ने कहा, अय्यूब ने, the things that I've greatly feared have come upon me. Satan was only able to strike him in the areas he greatly feared. Hallelujah. चलिए वापस चलते हैं। आपका enthusiasm देख के मैं तो एकदम मतलब encouragement से भर गया हूं इस समय। Okay, so let's go to the book of Galatians. दूसरे अध्याय में 11 आयत से हम देखेंगे। ठीक है, सीखना चाहते हैं? Okay, बीच-बीच में कभी आवाज निकाल देना कि मुझे पता लग जाए कि आप यहीं हो और रैप्चर नहीं हो गया है। Okay, good. All right. Okay, verse 11. पर जब कैफा, Cephas, meaning Peter, जब कैफा अंतकिया में आया, एंटियोक, ये वो शहर था। एंटियोक इज अ वेरी प्रोफाउंड एंड प्रोमिनेंट प्लेस इन द अर्ली क्रिश्चियनिटी। पहले के समय में एंटियोक, जो अंताकिया जो शहर है, इट वाज यरूशलेम जो था, वहां से हम देखते हैं कि सब कुछ शुरू हुआ। इट वाज लाइक द कैपिटल, द रिलीजियस कैपिटल। एंटियोक वाज द कैपिटल वेयर जेंटाइल बिलीवर्स, जहां पर अन्य जाति लोगों का हब था एंटियोक में, वहां पे ट्रेडिंग होती थी। इट वाज अ वेरी फेमस सिटी एंटियोक जो था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पतरस क्या किया। पतरस कहाँ आया? अंताकिया में आया। आप समझ लीजिए एंटियोक वाज द हेडक्वार्टर ऑफ जेंटाइल क्रिश्चियनिटी। ओके, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। Paul confronted Peter face to face, and this is so beautiful. ये बहुत अच्छा है। आप जानते हैं क्यों? It shows integrity. और इस आयत का गलत इस्तेमाल करके आज इतने सारे लोग YouTube में जाते हैं and they thrash people left, right, center without knowing about them, saying पॉल ने भी तो पीटर को डांट लगाई थी तो मैं भी लगा रहा हूं। I love that Paul कहता है कि मैंने उसके मुंह पे उसका सामना किया। मुंह पे सामना करने के लिए दम चाहिए होता है। जो कायर होते हैं वो कीबोर्ड के पीछे रहते हैं। मैंने कहा मुंह में सामना करने के लिए दम चाहिए होता है। Many keyboard warriors are the biggest cowards. स्क्रीन के पीछे छुप के गालियां लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। They slander people. That's not the spirit of Paul. He didn't go to fight with Peter. He confronted him because he carried the jealousy of the gospel. पौलुस ने पतरस के मुंह पे उसका सामना किया, मुंह पे आया उसके सामना करने के लिए। Okay? No gossip, no backbiting, no secret meeting. उसने पीछे नहीं बोला इधर आना, बारनबास इधर आ, टाइटस इधर आ। ये जो पतरस है ना, बहुत बनता है अपने आप को, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बड़ा बड़ा अपोस्टल बन गया है। ये नहीं कहा, मुंह पे जाके बोला। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई करी, हाथापाई करी। He went and confronted him with the truth. और हम देखते हैं it was a graceful confrontation. जब आप सच में किसी को प्रेम करेंगे ना और आप प्यार से करेक्ट करना चाहेंगे, उस करेक्शन का फ्रूट बहुत अलग है जब आप किसी को स्लैंडर करना चाहेंगे। एक पास्टर ने केरला में मैं देख रहा था, उनकी इतनी बढ़िया सेवकाई, मैं उन्हें जानता हूं, एक पिता का हृदय रखने वाले हैं वो, और उनकी वाइफ, मैं उनके साथ पर्सनली मिला, जैसी उनकी सेवकाई है। मगर मैं देख रहा था एक यूट्यूबर उनकी वाइफ के लिए गंदे गंदे कमेंट, एंड ही थिंक्स ही इज सर्विंग द लॉर्ड। इट्स अ स्पिरिट, इट्स अ स्लैंडरिंग ugly evil spirit. Amen? ठीक है, सो क्या किया मैंने? उसके मुंह पर उसका सामना किया। सो एक चीज हम पौलुस से सीखते हैं। क्या सीख? अगर पौलुस का स्वभाव सब में आ जाए, कलीसिया में गॉसिप खत्म हो जाए। लेट मी टेल यू फ्रॉम द पुलपिट, cowards are the biggest gossipers. You will not like what I'm saying, but I have to say it. जो पीछे चुगली करते हैं ना, वो सबसे बड़े कायर होते हैं। कायर, क्योंकि मुंह पे बात करने के लिए क्या चाहिए होता है? करेज चाहिए होता है। हालेलुया। ठीक है सब। अभी मैं वीजा की बात करता तो इतनी तालियां बजती, टका। Save yourself from the poison of gossip. It has destroyed so many destinies. अपने आप को चुगली करने से बचा लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलाहटें नाश हो गई इसके चक्कर में। ये जहर है, जहर। अगर किसी से दिक्कत है तो उसके मुंह पे जाके उससे बोलो, वहीं खत्म हो जाएगा उस दिन। याद रखना, उस दिन बोलो भाई कॉफी पे चलते हैं, भाई चाय पीते हैं, भाई मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आता हूँ, और प्यार से उसको बताओ।
मगर अगर आप 4 और बंदों को बताते हो और बाद में उस बंदे को पता है, पूरी कलीसिया में पता है, मगर उस व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया, दिस इज नॉट गुड। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, जब तेरे भाई ने तेरे विरोध कुछ पाप किया तो अकेले में जाकर, क्या? अकेले में जाकर उससे बात कर। इंटरनेट में वीडियो मत बना। अब वो बता रहा है कि पतरस किस उसमें दोषी ठहरा था, ठीक है? ओके, अब देखो कि क्या पौलुस ने क्या बोला। 12वीं आयत, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। मैंने आपको पहले बताया था, ये जो याकूब है, याकूब कौन है? प्रभु यीशु मसीह का भाई। दिस इज नॉट Peter, John, James वाला James, not the son of Zebedee. This James is the Lord's brother. The son of Zebedee was martyred in Acts chapter 12. Can you put गलातियों 1:19 लगाओ, so आपको क्लियर हो जाएगा। Galatians 1:19, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़, and I saw none of the apostles except James the Lord's brother. ये वो याकूब है, okay? So याकूब की ओर से, and this James in the history was called James the Just. मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि ऐसा खरा जीवन जीने वाला था, इसको बोलते हैं James the Just, okay? और याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। कौन खाया करता था? कौन खाया करता था? पतरस खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा, withdrew and separated. तो ये दिक्कत थी पीटर की, और ये पौलुस अब उससे बता रहे हैं। अब छोटी सी बात लगेगी आपको, मगर जो प्रेरित पौलुस है, ही इज गार्डिंग द गॉस्पेल, वो सुसमाचार को बचा रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको ये समझना पड़ेगा कि पुराने समय में खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण था। इट रिप्रेजेंटेड फेलोशिप। ये किसको दर्शाता था? फेलोशिप को दर्शाता था। ये दोस्ती को दर्शाता, संगति को दर्शाता था, बिलोंगिंग को दर्शाता था। तो पतरस क्या कर रहा है? एंटियोक में जब पतरस गया, एंटियोक में आपको क्या बताया था? वहां पे क्या थे? ज्यादा अन्य जाति विश्वासी थे, तो उनके साथ बैठ के खा रहे हैं। मगर यहूदियों को पहले से ये ट्रेन किया गया था कि आप कभी भी अन्य जातियों के साथ बैठकर नहीं खाओगे कुछ। मगर पतरस, क्योंकि पतरस के साथ प्रभु ने उसको एक चीज सिखाई। अगर आप प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय पढ़ोगे, if you read Acts chapter 10, Paul is praying, he's fasting, he gets hungry and he goes into a trance. पतरस क्या है? उसको क्या हुआ? एक दर्शन आया, और दर्शन में उसने क्या देखा? एक चद्दर स्वर्ग से नीचे उतर रही है, और उस पर क्या है? कुछ अनक्लीन एनिमल्स, एंड गॉड सेड, पीटर राइज अप, ईट, किल एंड ईट। पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, प्रभु मैंने तो कभी कुछ भी अनक्लीन, अशुद्ध नहीं खाया। तो परमेश्वर ने कहा, जिसको मैंने शुद्ध किया है उसको कोई अशुद्ध ना कहे। उस समय उसको समझ में नहीं आया, मगर बाद में जब कुरनेलियस के घर में, जो क्या था? एक अन्य जाति था, जब पवित्र आत्मा ने कुरनेलियस को बोला कि पतरस को बुला, और पतरस को पवित्र आत्मा ने बोला, जा वहां, मैंने तुझे भेजा। जब वो कुरनेलियस के घर गया और जब वो प्रचार कर ही रहा था, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा उन पर आ गिरा। तब वो समझा, अरे उद्धार तो अन्य जातियों के लिए भी है। Now Peter knew this and now he is having fellowship. अब सोचो, आपके साथ कोई मिल रहा है, खा रहा है, और जैसे ही याकूब की तरफ से लोग आए, पतरस ने हाथ धो लिया उन सबके सामने से। वो कह रहे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अरे ब्रदर पतरस ब्रदर पहचान नहीं रहे उन्हें। Why? Because he is afraid, and that tells us something about Peter. It's an old temptation. You know what the temptation was? When he denied Jesus because he was afraid. पतरस क्या हुआ? डर गया, क्योंकि उस समय भी डर गया था जब उसने यीशु का तीसरी बार इनकार किया। एंड दिस इज द सेम पीटर जिसकी परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। दैट्स व्हाई द गॉस्पेल इज नॉट अबाउट द ऑसमनेस ऑफ मेन, गॉस्पेल इज अबाउट द ऑसमनेस ऑफ गॉड, एंड ही स्टिल यूजेस इम्परफेक्ट वेसल्स। आज भी परमेश्वर असिद्ध लोग, आज तक कल का तो मुझे नहीं पता, आज तक प्रभु को आज तक कोई परफेक्ट बंदा नहीं मिला, तो वो इम्परफेक्ट बंदों का इस्तेमाल कर रहा है। Peter got afraid, but still Peter did. That's a good news for you and me. Amen. That's a good news. अगर पतरस परमेश्वर के लिए इतने बड़े काम कर सकता, तो आके तो आपको नहीं पता, मेरा जीवन सिद्ध नहीं है। परमेश्वर कहता है, तेरे द्वारा भी मैं बड़े-बड़े काम कर सकता हूं। The same God who worked mightily through Peter is the same God who will work mightily through you. Amen. Hallelujah. मैं जब perfection की बात कर रहा हूं, मैं perfection कामों में कह रहा हूं। The perfection Bible talks about is a different kind of perfection. We'll talk about that. I taught you that in the series of righteousness. मैंने आपको सिखाया था, okay? अब देखो, वह डर के लोगों के मारे, fear of people. You know the problem. आज कितने लोग विश्वास में नहीं आते कि मेरी ननद क्या कहेगी, मेरे ताऊ जी क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या कहेंगे। वो विश्वास करते हैं मगर सीक्रेट छुपा के रखते हैं सबसे। अरे अरे किसी के सामने मत बोलना। The Bible says the fear of people. Proverbs 29:25 लगाइए। Proverbs 29:25. Let's see what the Bible says. Hallelujah. मनुष्य का भय खाना, क्या हो जाता है? मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। आज के समय में कई लोग क्या करते हैं? किसी मनुष्य से डरते हैं तो एक झूठी कहानी बताते हैं, फिर उस झूठी कहानी को बचाने के लिए एक और झूठी कहानी बताते हैं, फिर इतनी सारी झूठी कहानी खुद ही भूल जाते हैं कौन सी कहानी मैंने बताई थी। अरे सच बोलोगे तो एक बार दिक्कत होगी, मगर उसके बाद रात को आराम से सोओगे हमेशा। अगर झूठ पे झूठ बोलकर ऐसे करोगे तो आप चैन की सांस नहीं सो सकते रात को। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। Amen? ठीक है। उसके साथ अब केवल पतरस के साथ ऐसा नहीं हुआ, because he was a leader. That's why it's very careful what the leader does, the people will follow. उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। क्या किया? कपट किया। यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। Always remember, leadership multiplies behavior.
That's why the Bible says, let not everybody become a teacher, because you'll have a stricter scrutiny, you'll have a stricter judgment. इसीलिए वचन कहता है हर कोई शिक्षक ना बने, क्योंकि जो आप सिखा रहे हो फिर आपको उस पर रखा जाएगा, आपकी जिंदगी को वैसे परखा भी जाएगा. So Barnabas, I told you about Barnabas last week. He was a son of encouragement, a peacemaker. Even he was led astray by the hypocrisy. और ये जो वर्ड hypocrite है, जिसे hypocrisy आता है, हिंदी में क्या है? कपट. जो शब्द hypocrite है, आप जानते हैं ये शब्द का मतलब क्या है? किस शब्द से आता है? शब्द है actor. किस शब्द से? Actor. To be a hypocrite means to act and try to act something that you are not. उसी का वो शब्द है. अभिनेता, जब आप एक अभिनय कर रहे हो. Amen? पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा. अब आप देखो, look at how Paul confronted Peter, and it's very graceful, it's very respectful. तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है. Damn. It's a powerful moment. Can you imagine? जो सच्चा होता है ना वो खरा होता है. पौलुस सच्चा था. वो कह रहा है पतरस से. कौन पतरस? जो स्तंभ है कलीसिया का, who is regarded as the pillar. वो से कह रहा है जब तू यहूदी होके अन्य जातियों की तरह जीता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदी के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया. That means for a leader, if you teach something to people which you don't do, you're a hypocrite. Amen. यही हैं आप. वीजा की प्रार्थना अभी करें बाद में? अभी नहीं, बाद में. ठीक. अरे वचन सीख लिया ना, सारे वीजा पीछे भागेंगे. It's my biggest desire. ये मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रेमी हो. आपने आज गवाही देखी उन बहन ने क्या बोला? And I loved it. See, the thing is, अगर वचन सीख कर भी आप मुझे ही ढूंढोगे, I did a bad job. My job will be good when you don't need me. एक पास्टर, एक कोच का काम तब अच्छा है जब लड़ाई के समय आपको उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने अच्छे से ट्रेनिंग ली है. आर्मी में ये नहीं होता, लड़ाई होती है अपने बॉस को, सर ये कैसे रिलोड करते हैं सर, जरा दोबारा रिलोड कर देना मेरे लिए. नो. अगर ट्रेनिंग अच्छे से करोगे और ट्रेनिंग अच्छे से लोगे तो लड़ाई के समय एकदम आप हियाव से भरे हुए होगे. और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्वयं तैयार करना है, दैट यू विल बी रेडी टू फाइट योर बैटल्स, बिकॉज द सेम गॉड इज वर्किंग माइटली थ्रू यू. क्योंकि आपके पास वही परमेश्वर का वचन है. आमीन. आपके पास परमेश्वर का वही वचन है. मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर रात को 3 बजे पेट में बहुत तेज दर्द होगा तो किसको कॉल करोगे? मुझे तो नहीं कर सकते, मेरा नंबर नहीं है आपके पास. फिर कहोगे अरे हमने 10 प्रेयर लाइन में कॉल किया. अरे कब तक ऐसे जियोगे छोटे बच्चों की तरह? वचन, आपका वचन ऐसे भरा होना चाहिए कि जब शैतान आए आपके मुंह से निकले, लिखा है शैतान, लिखा है. जैसे यीशु ने शैतान को हराया वैसे ही आप भी हो. और ये तब होगा जब ट्रेनिंग के समय आप सतर्क हो. जब ट्रेनिंग चल रही है गन को रिलोड कैसे करना है और आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो जब आएगा आगे से दुश्मन तो रिलोड करना नहीं आएगा. आज जो when I see these testimonies, I'm so glad. जब मैं इन गवाहियों को सुनता हूं, you know why? Because they did not get healed by my gift. They got healed by their faith. वो अपने विश्वास से उन्होंने चंगाई पाई. My responsibility, मेरी जिम्मेदारी is not to lead you to me. My responsibility is to lead you to God's word. जो वचन अविनाशी है, जो वचन नाश नहीं हो सकता. And if I have taught you how to stand on God's word, my job is done. Amen? मतलब वचन तो आपको सिखाता रहूंगा, मगर लड़ाई आप लड़नी सीख जाओगे. मैं एक जगह जाता था, वो बुलाते थे प्रचार करने, तो मैं जाता था एक जगह, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना. तो जब वचन में सिखा रहा हूं ना, तब सारे लोग फोन में लगे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं. और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, लंबी लाइन लगती थी, लंबी लाइन. यही चलता था वहां. मैंने हाथ जोड़न पास्टर को, मैंने कहा पास्टर आज के बाद मुझे कृपया करके यहां ना बुलाइएगा, क्योंकि जहां परमेश्वर के वचन का आदर नहीं, मैं वहां नहीं आना चाहता. योर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड्स वर्ड डिफाइंस द फ्रूट्स इन योर लाइफ. हालेलुया. अब तो तुम्हें हाथ रखने वाले बनना है. कब तक हाथ रखवाते रहोगे? आमीन. वचन, आपका छुटकारा वचन में है, आपकी चंगाई वचन में है, आपका प्रमोशन वचन में है, आपकी बढ़ोतरी वचन में है. सब कुछ परमेश्वर के वचन में है. आमीन. ऑलराइट, आगे चलते हैं. सो क्या बोला उसने? कि जब तू यहूदी होकर तू अन्य जातियों की तरह था. इसका मतलब पीटर वाज नो लॉन्गर लिविंग अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ मोसेस, बिकॉज लोगों के साथ बैठकर, अन्य जातियों के साथ बैठ, आपको अलाउ नहीं था करना. आप नहीं कर सकते थे. आज सुसमाचार में हमने ऐसी चीजें ऐड कर दी, जैसे कई जगह वहां अगर आपने सफेद कपड़े नहीं पहने तो आप अलाउड ही नहीं वहां प्रचार करना, आपको व्हाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे. अगर किसी ने एक नेकलेस पहन लिया या टॉप्स पहना है तो उनको कम्युनियन नहीं दिया जाएगा. व्हाट इज दैट? दैट इज एडिंग टू व्हाट द लॉर्ड हैज डन. यीशु ने फरीसियों को कहा हाय तुम पर, क्योंकि तुम खुद तो एक उंगली भी नहीं हिलाते, और तुमने क्या किया? स्वर्ग जाने को क्या कर दिया? बहुत ही मुश्किल बना दिया है. मगर खुद तुम बोझ, और तुम लोगों पे बोझ डालते रहते हो. यू आर बर्डनिंग पीपल. ठीक है, 15वीं आयत. हम तो जन्म से यहूदी हैं
और पापी अन्य जातियों में से नहीं है। वाओ, नाउ व्हाट इज पॉल सेइंग? पौलुस क्या कह रहा है? वो कह रहा है हम जन्म से क्या हैं? यहूदी हैं, और पापी अन्य जातियों में से नहीं है। इसका मतलब क्या यह है कि पौलुस कह रहा है जो यहूदी हैं वो पापी नहीं है, बाकी अन्य जातियां पापी हैं? नो, पॉल इज अडॉप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ जूइश प्रिविलेज टू गिव देम अ मैसेज। पूरा जब हम सुनेंगे वो क्या कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग क्या विश्वास करते थे कि जो अन्य जाति हैं वो क्या हैं? पापी हैं। जेंटाइल सिनर्स, दैट वाज द कॉमन थिंग दैट दे यूज्ड टू से, कि जो बाकी अन्य जाति हैं वो क्या हैं? पापी हैं। और वो सोचते थे हम पापी नहीं क्योंकि हम इब्राहिम की संतान हैं, वाचा के लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया, इसलिए हम पापी नहीं, मगर दुनिया के जो लोग हैं वो क्या हैं? वो पापी हैं। अब देखिए आगे, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी है। केवल, इट्स नॉट वन ऑफ द वेज, दैट्स द ओनली वे। केवल, और कुछ मिलावट नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है। केवल। आमेन। पुट रोमन्स 3:9, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रोमियो 3:9, रोमियो 3:9 यहां पे क्या लिखा है? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? यानी वो कह रहा है हम यहूदी होकर क्या उनसे अच्छे हैं अन्य जातियों से? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब both Jews and Greeks that they are under sin. That's why Paul's ministry was hated, because he was saying he was going against the time. वो उस समय के विरोध में जा रहा है। वो कह रहा है यहूदी लोग, चाहे तुम यहूदी ही हो, मैं कह रहा है तुम भी पाप के अंदर हो। Amen? और मनुष्य व्यवस्था के कामों से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता। Now this word justified, diaco, this word, इसका मतलब ये नहीं है gradually growing into righteousness, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊंगा ना, मैं और धर्मी होता जाऊंगा। No, आप धार्मिकता में बढ़ते नहीं हो। You are declared righteous. I said you are declared righteous. It's a legal language. जैसे कोर्ट में केस चल रहा है और जज बैठा है और जज ने बोला ये जो व्यक्ति है मैं इसे निर्दोष करार देता हूं, he is acquitted, there is no sin on him and he is not guilty. He is acquitted. He is declared righteous. Amen? It does not mean to gradually become righteous. कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से क्या ठहरते हैं? आप देखो ध्यान से। Now what people do is, आपने यीशु पे विश्वास किया, आप धर्मी हो गए, मगर आप लोग क्या आते हैं? अच्छा, what is your denomination? किस नाम से तुमने बपतिस्मा लिया? रात को प्रार्थना करते हो, सुबह प्रार्थना करते हो, लेंट में 40 दिन की प्रार्थना। दे डोंट अंडरस्टैंड मैन इज नॉट जस्टिफाइड बाय द वर्क्स ऑफ द लॉ। एंड धर्म क्या करता है उसके बाद चीजें बढ़ाता रहता है। नहीं, आपको ये भी करना पड़ेगा तब आप स्वर्ग जा सकते हो। आपको ये भी, अगर तायत नहीं दी, दशमांश भी देना पड़ेगा। दशमांश नहीं दिया तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से निकालेगा। इज अ डॉक्ट्रिन फ्रॉम हेल। आई सेड इज अ डॉक्ट्रिन फ्रॉम हेल। ना दबाव के ना कुड़कुड़ा के, बिकॉज़ गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। मैं आज आपको एक चीज सिखाता हूं, हमेशा मेरी बात है। अगर आप किसी भी ऐसी मीटिंग में हो जहां व्यक्ति दबाव डाले, देना पड़ेगा, 200 लोग उठ जाओ, इतना दो, कभी मत देना हो जाएगा। गिव बाय थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट। आमेन? ओके, आगे चलते हैं। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। कैन यू पुट Hebrews 10:1-4? कितने लोगों को याद है हमने धार्मिकता का एक सीरीज किया था? अगर आप आज भी कई विश्वासियों को देखो ध्यान से, Their life revolves around sin consciousness. पाप की चेतना के चारों ओर उनका जीवन चलता है। You don't have to be sin conscious, you have to be son conscious. Amen? और वो नहीं जानते कि ऐसा करने के द्वारा वो आज भी व्यवस्था के अधीन है। किसके अधीन है? और मैं आपको दिखाता हूं कैसे। For the law having a shadow of the good things, the law did not have good things, the law had shadow of good things. अच्छी बातों की क्या थी? परछाई थी। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं क्या था? प्रतिबिंब या परछाई, पर उनका असली स्वरूप नहीं था। लॉ जस्ट हैड द शैडो ऑफ गुड थिंग्स। ओके, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था, अगर मैं आपको ध्यान से सुन रहे हो, व्यवस्था पास आने वालों को कदापि सिद्ध, फिर से बोलता हूं, व्यवस्था पास आने वालों को perfect. What is the word here? Perfect. But this talks about a different kind of perfection. It's not the perfection that you achieve, it's the perfection that is declared over you. That God sees no blemish in you. Amen? नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता? अगर व्यवस्था में जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा लोग पवित्र किए जाते, लोग सिद्ध किए जाते, परफेक्ट किए जाते, तो फिर उन बलिदानों का चढ़ाना क्या हो जाता? बंद हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। Worshippers once purified would have had no more consciousness of sins. मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या प्रभु यीशु मसीह में आपके पाप क्षमा किए गए हैं? जितने लोग मानते हैं हां, अपना हाथ उठाओ। Are you sure? आपके पाप क्षमा करे गए पूरी रीति से? Your sins are forgiven. Are you sure? कितने लोग मसीह के लहू से यहां पर धुले हुए हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। ओके, Then my question to you is, why are you still sin conscious? अगर सच में मसीह के लहू ने आपके पापों को धो दिया, तो फिर आज भी आपका विवेक क्यों आपको बार-बार पापों की याद दिलाता है?
Because the worshippers, once purified, will have no more consciousness of sins. कई मसीह लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता पाप से शुरू होता है, पाप से करते हैं। जो सबसे पहले कहते हैं प्रभु आज पाप नहीं करना चाहता प्रभु मैं। The sin is the main character in their life. Sin. प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता प्रभु. So they never enjoy this intimacy with God. क्योंकि कॉन्शियसनेस में क्या है? Their consciousness is tainted with sin consciousness. उनका जो विवेक है उन्हें बार बार पाप की याद दिलाता है. और पुराने नियम में भी ऐसे ही होता था. आप जानते हैं एक डिनोमिनेशन है, नाम नहीं लूंगा, गूगल करोगे मिलेगा नहीं. एक डिनोमिनेशन, वो जब भी प्रार्थना करते हैं, खाना खाने की प्रार्थना भी, उससे पहले अपने सारे पापों को याद करते हैं. खाना तो ठंडा हो जाता होगा ऐसे. ओ प्रभु जी आज तक जो पाप हमने जाने अनजाने में करे प्रभु जी. Because their entire relation with God, it's sin consciousness. अगली आयत लगाओ. परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण. Because in those sacrifices there is a reminder of sins. The enemy reminds you of your sins that has been removed. वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप हमसे इतने दूर कर दिए हैं जितने पूरब से पश्चिम. विश्वास करते हो आप? Can you put Ephesians 1, 5 and 6? In him we have redemption, the forgiveness of our sins. 6. Oh, is it? Which verse is that? 7. Okay, sorry. In him we have redemption through his blood. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की forgiveness of sins. कई लोग कहते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुना, कि यीशु मसीह ने आपके पुराने पापों को माफ किया, आपके भविष्य के पापों को माफ नहीं किया अभी. This is what I call putting your logic into the gospel. मनुष्य दिमाग जो हमारा छोटा सा है ना, जब हम उसे सुसमाचार में डालते हैं तो हम सुसमाचार को खराब कर देते हैं. क्योंकि हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने कौन से पाप क्षमा करे अभी? पुराने. तो एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने लहू कब बहाया था? 2000 साल पहले. आप पैदा कब हुए? तो आपने जो पाप किए वो फ्यूचर थे क्राइस्ट के क्रॉस से. द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट वेंट बैक टू एडम एंड वेंट इन फ्यूचर टू द लास्ट मैन दैट देयर हैज टू बी. दैट्स द पावर ऑफ क्रॉस. That's the power of the blood. Otherwise, he can never forgive sins of humanity. अन्यथा हमारे पाप क्षमा हुए ही नहीं. Amen? आदम से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस ना आ जाए. The cross of Jesus transcended time. In him we have received forgiveness of sins. Amen? तो जब शैतान आपको आपके पाप, yes, am I saying that अब आप गलतियां नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग we go to the other extreme. Whenever you miss, whenever you do something, just go into God's presence and just say, just bring it into light. But you are not forgiven according to your confession. कई लोग विश्वास करते हैं अगर मैंने अंगीकार नहीं किया तो उन पापों को परमेश्वर ने माफ नहीं किया. अगर ऐसा है तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना, एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा. You are not saved by your memory कि कितना अच्छा आप अंगीकार कर सको जो आपने पूरे हफ्ते में किया. You are saved by the sacrifice of Jesus. Amen? इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा. किससे धर्मी ठहरते हैं हम? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम लोग धर्मी ठहरते हैं. People want to add to it. Okay? हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं. Why was he saying कि अब जो हम मसीह में, क्योंकि यहूदियों को भी अगर मसीह के अधीन जाना है तो उन्हें मानना पड़ेगा व्यवस्था में उनके लिए धार्मिकता नहीं. वो भी पाप के अधीन है जैसे बाकी सारे लोग हैं. इसके लिए बहुत नम्रता चाहिए. तो कहता है क्या अब मसीह पाप का सेवक बन गया? That everybody has to become a sinner, then Christ will save them? He's like no. क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर से बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं. What was Peter doing? पतरस ने क्या किया? वो पुराने उस स्ट्रक्चर को दोबारा बना रहा था. What was he doing? दोबारा अलग हो रहा था अन्य जातियों से, अपने आप अलग था. What was Peter doing? Peter was trying to rebuild what Jesus had destroyed. The Bible says that wall has been abolished between Gentiles and Jews. अब वो दीवार जो एक यहूदियों की और अन्य जाति के बीच में है वो गिरा दी गई है. अब आपका बैकग्राउंड क्या था मैटर नहीं करता. आप यहूदी थे, आप यूनानी थे, आप चाइनीज थे, आप जापानीज थे, आप इजिप्शियन थे, आप मराठी थे, आप बंगाली थे. इससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मसीह के लहू से अब धुले हुए हैं. आप जानते हैं सब दुख की बात क्या है? वी आर बिल्डिंग द सेम थिंग लाइक पीटर. कई लोग क्या करते हैं? सारे मलयाली एक साइड, सारे मराठी एक साइड. दे हैव नॉट अंडरस्टूड द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस. ओ जी वो तो पंजाबी चर्च, पंजाबी सब नहीं जी. कोई पंजाबी कोई मराठी, अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. डोंट कीप योर एथनिक लीनिएज अबव योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जीसस. आमेन. अब आप बंगाली हो, आप मद्रासी हो, आप कौन सी जात हो, आप क्या हो, फर्क नहीं पड़ता. हम भाई बहन हैं. अब एक परिवार है मसीह में. हम एक हैं अब मसीह यीशु में. इसीलिए पौलुस को ये लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि अगर वो पतरस के सामने ये नहीं कन्फ्रंट करता तो ये आज तक होता. There is no privilege in Christ. Your background gives you no privilege in Christ Jesus. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी ना ठहराएगा परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा. तो अब जो वो वैश्या है वो क्या है? अब वो धर्मी है. अब वो वैश्या, उसकी पुरानी जो पहचान थी वो खत्म. अब वो प्रभु की बेटी है. अब वो क्या है? प्रभु की बेटी हो गई. उसके लहू से धुल चुकी है.
तो जैसे वो लोग जिनको घमंड था कि हम कुछ हैं, जैसे उनको अपनी पुरानी पहचान को कूड़ा समझना है, वैसे ही उन लोगों को भी जो शर्माते थे, जिनकी पहचान बुरी थी, उन्हें भी अपनी पुरानी पहचान को कूड़ा समझना है और नई पहचान को एक्सेप्ट कर लेना है। अब अगर कोई से बाहर मिले और कहे अरे हम तो जानते हैं तू कैसी थी, वो कहती है अच्छा मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, उसके लहू से धुली हुई हूं। बोले हमें पता है तू पापिन है, वो कहेगी है ढूंढ लो मिलेंगे नहीं कोई भी पाप। ये कहने की बातें नहीं है, ये सुसमाचार है। कलीसिया अगर इस बात को नहीं समझेगी, यू आर डिक्लेयर्ड राइचियस इन अ मोमेंट, आप धर्मी एक क्षण में कर दिए जाते हो। नाउ यू आर, जो सैंटिफिकेशन है ना, जो शब्द सैंटिफिक होलीनेस है, होलीनेस इट हैज टू डू विद सेपरेशन। अब आप दुनिया के सिस्टम से अलग किए जाते हो, आपकी सोच अलग की जाती है, तो आपका व्यवहार भी बदलता जाता है। सैंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस बट डिक्लेयरिंग राइचियसनेस, देखो इसमें देखो, फॉर बाय वन ऑफरिंग ही हैज और ही विल, हैज और विल, हैज मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब हुआ था, आमेन। ही हैज डिक्लेयर्ड, ही हैज परफेक्टेड फॉरएवर, दैट मींस इट्स एन इटर्नल राइचियसनेस, आपको सदा के लिए सिद्ध किया जा चुका है। You are declared perfect forever. He has perfected forever those who are being sanctified. Okay? एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध तो कर दिया है, मगर अब वे लोग पवित्र किए जाते हैं। But when it comes to righteousness, you are declared righteousness. Amen? Hallelujah. And the blessings of the Lord are for the righteous. अब प्रभु हमें सैंटिफिकेशन में लेके जाता है। जब मैं कलीसिया में पहली बार गया था, मेरे इतने लंबे बाल थे, जीन्स यहां पे थी, जेब यहां पे। जब मैं पहली बार गया तो कलीसिया में लोग कह रहे ये कौन आ गया, मगर जब प्रभु को अपना जीवन दिया, जब पवित्र आत्मा ने सिखाया, तो सब अलग करता गया दुनिया से, सिखाता गया अपने वचनों में चलना, तो सब कुछ बदलता गया। मगर जिस दिन यीशु मसीह को जीवन दिया, जिस दिन उस पर विश्वास किया, उसी दिन उसने कह दिया ये मेरा बेटा धर्मी है मेरी नजर में, ही इज ब्लेमलेस इन माय साइट, आई हैव परफेक्टेड हिम थ्रू माय सैक्रिफाइस। आमेन। वो कह रहा है मैं व्यवस्था के लिए मैंने क्या किया, मैं मर गया। पुट रोमन्स 7:1-4, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बहुत बढ़िया। रोमियो 7:1-4, उसके बाद जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो 7, हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, किससे कह रहे हो, व्यवस्था के जानने वालों से, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक ही व्यवस्था की उस पर प्रभुता है। दूसरी आयत, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। आगे, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। यह उदाहरण दे रहा है पौलुस, ओके, व्यवस्था के बारे में सिखाना चाह रहा है। चौथी, वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो, बन गए नहीं, मर गए हो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ डिड वी डाई? तुम मसीह की देह के द्वारा, बाय द बॉडी ऑफ क्राइस्ट यू डाइड टू द लॉ। हाउ? बिकॉज वी वर यूनाइटेड विद क्राइस्ट, व्हेन क्राइस्ट डाइड वी डाइड विद हिम। जब मसीह मरा तो हम मसीह के साथ क्या हुआ, हम व्यवस्था के लिए मर गए। द बाइबल सेज आवर ओल्ड मैन वाज क्रूसिफाइड विद हिम, हमारा पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्या हुआ, क्रूस पर गाड़ा मारा गया, नाश किया गया। वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हालेलुया। हम पहले व्यवस्था के अधीन थे। जब व्यवस्था के अधीन थे तो श्राप के अधीन थे, क्योंकि गलातियों 3:13 में लिखा है जो व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है। बट वी डाइड, दैट्स द गुड न्यूज। आप जानते हैं, पड़ोसी को बोलो मैं मर गया। कुछ लोग बोले नहीं डर के, मैंने बोलो मर गया, मैं नहीं बोल रहा। Why is sin dominating in so many believers? Because they still don't reckon this truth that they died. When they died, their addiction died. एक व्यक्ति है 20 सिगरेट पीता था एक दिन में, 60 सिगरेट पीता था एक दिन में। अब जब मर गया तो पिएगा 60 सिगरेट। तो जब मरा तो उसकी वो लत सिगरेट पीने की वो भी खत्म हो गई। तो अगर आपको मानना पड़ेगा सत्य कि आपका पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Your old man was crucified with Christ. Amen? जिसको वो एडिक्शन था वो मर गया। पौलुस कह रहा है मैं मर गया। फिर से पड़ोसी को देख के बोलो मैं मर गया। फिर नहीं बोला वो व्यक्ति।
एक बार हम लोग नारायणा में थे, तो नारायणा में मैंने बोला जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की जो आशीष है वो आपके जीवन में, अपना हाथ खड़ा करो। तो सब हाथ खड़ा करो। एक व्यक्ति ऐसा बैठा था, उसकी बीवी हाथ खड़ा करी थी। मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए आपकी आशीष, मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपके हिस्से की आशीष प्रभु मुझे दे दे। जैसे ही मैंने ऐसे कहा, वो लड़ने लग गया अपने पति से, हाथ उठाओ हाथ। मैंने नहीं बहन, मैंने कहा लड़ो मत, पता लात घूसे मारने लग जाएंगे। मैंने लड़ो मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। किसी के बदले की आशीष किसी के पास नहीं आती है, आपके बदले की आपके पास ही रहेगी। Say I died. But the good news is also, as I died with Christ, so I was raised together with Christ Jesus. जैसा मैं मसीह के साथ मारा गया, वैसे मैं मसीह के साथ गाड़ा गया, और वैसे ही मैं मसीह के साथ मरे हुओं में से जी उठा। And not only I was raised together, but I was made to sit together with Christ Jesus, far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but ages to come. Hallelujah. Amen. अगर अब आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हो, अब जो आप हो, there is no addiction that you cannot overcome. There is no habit that you cannot overcome. ऐसी कोई लत नहीं जिससे आप बाहर ना आ सको, because he has already seated you in the place of victory. बैठने का मतलब सिंहासन पे क्या है पता है आपको? कि आप पहले ही जय में प्रभुता कर रहे हो. That's what sitting means. It is a sign of ruling and reigning. You are seated with Christ Jesus. Amen. मैं मसीह के साथ क्या है? क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. Romans 6:11. Romans 6:11. This is the antidote to every addiction. आज मैं आपको दवाई दे रहा हूं हर एक एडिक्शन से बाहर आने का. Romans 6:11. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. Reckon yourself dead indeed to sin. That means when sin comes to tempt you, you are dead. अब सोचो ये जो व्यक्ति था जो 60 सिगरेट पीता था, अब इसके दोस्त आए, इसकी बॉडी रखी हुई है, अब एक व्यक्ति कह रहा है पिएगा, तेरी फेवरेट है, पिएगा वो, पिएगा, क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो, बस समझ जाओ तुम्हारा पुराना मनुष्य तो भी, the one that enjoyed that addiction, the one that was bound to that slavery, the one, वो जो शराब की लत में, pornography की लत में, हर एक उस बुरी बात में फंसा हुआ था. Your old man died to sin. तुम पाप के लिए मर चुके हो. बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूं. फिर से बोलो मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मगर परमेश्वर के लिए जीवित हूं. हालेलुया. Amen. Okay. Okay, दो और verses. And then मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया. क्या लिखा है? और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. मैं मसीह. That's what many believers don't know. कई विश्वासियों को ये नहीं पता. क्या नहीं पता? Many people think Jesus died for me. That is not the full gospel. Jesus did not die for you. Jesus died with you. Let me say that again. मसीह केवल आपके लिए नहीं मरा, मसीह आपके साथ मरा. पॉल इस प्रकाशन को समझ गया, इसीलिए कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया. कोई पौलुस से पूछे, पौलुस तू तो था ही नहीं वहां पे. मैं भी था. Jesus was dying on that cross for the entire humanity. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा. English Bible says it is no longer I who live. And you know the beautiful thing is this word I in Greek is the word ego. क्या है? Ego. It is no longer ego who lives, if I can say it this way. It is no longer ego who lives, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अहम. मैं डीप बेसी वॉइस में, मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया बताऊं तुम्हें? मैंने ये किया और फिर मैंने ये किया और मैंने ये किया और फिर मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैंने ये किया. मैंने, तुम्हें पता है मैंने कितना, मैंने जो किया, फिर मैंने, फिर उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, मगर सारी महिमा यीशु को. और स्वर्गदूत स्वर्ग में बात करें, बची थी या कुछ नहीं? बोलो माई ईगो वॉज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट. पॉल कहता है अब कौन क्यों मार रहा था? ईगो ही तो थी उसके अंदर, कलीसिया को सता रहा था ना. ही थॉट ही इज द बेस्ट. बाद में पौलुस कहता है मैं तो लीस्ट हूं विश्वासियों में भी, मैं वो कहलाने के लायक भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के घर को मैं सताता था. किस में? जलन में, ईगो में. अब वो समझा मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया. बोलो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं.
सोचो आप ऑफिस जा रहे हो, वो सिगरेट की दुकान वाला है, बोले भाई साहब आज आपकी गोल्ड फ्लेक, कहना वो तो मर गए। That is the gospel. It is funny but it is the truth. अभी हम हंस रहे हैं but that यही तो सच्चाई पौलुस बताना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो टेम्प्ट होता था, जिसको पाप खींचता था अपनी ओर, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। अब पाप का हमारे ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। You don't overcome sin by fighting sin, my dear family. बोला सिखाया जाता है पाप से लड़ो, पाप जितना वो पाप से लड़ते हैं उतना पाप के अंदर चले जाते हैं। You don't overcome sin by fighting sin. You overcome sin by reckoning yourself dead to sin. आप पाप के ऊपर कैसे जीते हो? जब आप ये मान लेते हो कि आप पाप के लिए Amen. So जिसको डर लगता था, वो जिसको सिगरेट पीने की लत थी, जो पोर्नोग्राफी देखता था, जिसको झूठ बोलने की आदत थी, और अब एक नई सृष्टि जीवित है। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। पुरानी सारी बातें बीत गई। आमीन। एक परमेश्वर के दास हैं, जब वो प्रभु पर आ गए और बढ़ने लगे तो उनके दोस्त मिल गए उनको, जो उनके पूरे गैंग थे। और तो आजकल आता नहीं हमारे साथ, तो उन्होंने कहा मैं अब परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। कहा अच्छा बड़ा संत बन गया तू, अब भूल गया जो तू करता था। तो कह रहे कब करता था मैं से? मुझे याद नहीं आ रहा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण, आपके पापों को स्मरण कौन करता है जानते हैं? शैतान और आप। परमेश्वर नहीं करता। क्या परमेश्वर, डू यू थिंक गॉड मीन्स व्हाट ही सेज? डू यू नो व्हाट? दैट्स व्हाई द लॉर्ड इज सो ब्यूटीफुल। ओके, परमेश्वर को परमेश्वर जो चीज बनाती है। आज क्या है? संडे। मगर अगर परमेश्वर कहते आज बुधवार है तो क्या होगा? तो बुधवार हो जाएगा। कैलेंडर्स विल चेंज। अगर परमेश्वर आज कहते अभी रात है तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। गॉड कैन नॉट लाई। व्हाई? बिकॉज वट एवर ही विल से विल कम टू पास इंस्टेंटेनियसली। That's why he cannot lie. So when God says, I will remember your sins no more, that means his ability to remember sins is wiped off. Because God is not a liar. अगर परमेश्वर कहता है मैं तेरे पाप याद नहीं करूंगा, यानी आपके पाप याद करने की क्षमता गई। आप कहें प्रभु जो 20 साल पहले मैंने किया। प्रभु कब किया तूने बेटे? You know, अजीब लगता है मुझे पता है, but that's what the gospel is. That's the reality. God does not remember your sins anymore. I said God does not remember your sins anymore. I was reading a book by an amazing man of God. और बहुत ही amazing book थी. Again, I'm not trying to build my theology because it's filled with visions, but just something that I learned and it's beautiful. वो कह रहे परमेश्वर उनको स्वर्ग में एक ऐसे कमरे में ले गया जहाँ पे लाइब्रेरी टाइप की थी और परमेश्वर के बहुत सारे संतों के बारे में पुस्तकें थी। आप जानते हैं ना आपकी भी एक पुस्तक है स्वर्ग में? कितने लोग जानते हैं आपकी एक पुस्तक है स्वर्ग में? ओके, और उस पुस्तक में उन्होंने इब्राहिम की पुस्तक निकाली। उन्होंने इब्राहिम की पुस्तक निकाली तो इब्राहिम के बारे में सारी चीज लिखा है, मगर उनका प्रभु इसमें तो वो लिखा ही नहीं है जब उसने झूठ बोला। तो प्रभु ने उनसे कहा यहां स्वर्ग में आई डू नॉट रिकॉर्ड द फेलियर्स ऑफ माई चिल्ड्रन। उन्होंने कहा मगर प्रभु पृथ्वी में जो हमारी बाइबल है उसमें तो लिखा है। प्रभु ने कहा तुम्हें सिखाने के लिए, मगर स्वर्ग में जो रिमेम्बरेंस की बुक है मेरे पास, आई डू नॉट रिकॉर्ड द फेलियर्स ऑफ माई चिल्ड्रन। इट्स ब्यूटीफुल। आमीन। The gospel is so beautiful. क्योंकि सुसमाचार प्रचार ऐसे हुआ है, what we have done is we have made heaven the main reward of the gospel. That's the problem. हमने सुसमाचार का सबसे बड़ा प्रतिफल स्वर्ग को बना दिया है। Apostles never preached the gospel like that. हमने पिता को हटा दिया। कितने लोगों का आप सुनोगे वो बोलते हैं बिना यीशु के आप स्वर्ग नहीं। यीशु ने कभी नहीं बोला है जिस दिन से। Jesus said without me no one can go to the Father. We have replaced Father and put heaven there. That's the problem. क्योंकि सुसमाचार पूरा एक रियल स्टेट एजेंट की तरह हो गया है। सुसमाचार सुनाना, स्वर्ग जाना है तो विश्वास करो, सोने की सड़कें वहां पे बढ़िया। So we made it about a place rather than about a person. हमने सुसमाचार एक जगह के बारे में बता दिया rather than प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Let me tell you church, Jesus Christ is the real reward of the gospel. प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है सुसमाचार का। Amen. I'm not taking heaven away from you. Yes, you all will go to heaven and I'll go to heaven. But what makes heaven heaven? Sometimes I think. मैं कभी घर में ऐसे सोचता हूँ, स्वर्ग को स्वर्ग क्या बनाता है? Not the golden streets. क्योंकि दुबई में भी अब गोल्डन सड़कें बनाने का सोच रहे हैं। That will not make Dubai heaven. It's the presence of my Father.
is the presence of your Father. He is our real reward. Amen. So लोगों की पूरी जो वॉक है ना ये मसीह में आने के बाद वो स्वर्ग की जगह फिक्स करना चाह रहे हैं पूरा, rather than receiving this love from the heavenly Father and enjoying a beautiful intimacy with Him. पूरी जो जद्दोजहद चल रही है वो ये है कि स्वर्ग ना चला जाए हाथ से. अरे जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा. Can you put Romans 8:34? मेरे से अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग बड़ा है यीशु मसीह? पक्की बात? जो लोग मानते हैं स्वर्ग बड़ा है हाथ उठाओ. पता नहीं आप जाओगे नहीं जाओगे. जो लोग मानते हैं यीशु मसीह बड़ा है हाथ दिखाओ. ओके, सॉरी, पुट 32. तो अगर यीशु मसीह स्वर्ग से बड़ा है, जब वचन कह रहा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों कर ना देगा. जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को ना रख छोड़ा, कई लोग आज सिखाते हैं परमेश्वर आपकी चंगाई रोक रहा है. गॉड इज विदहोल्डिंग हीलिंग. Oh really? Why? He gave you Jesus but he won't heal you. God is, when he did not withheld his son, जब उसने अपने निजी पुत्र को ना रख छोड़ा मगर उसे आपकी और मेरे लिए सेहत में दे दिया, तो बोलो उसके साथ तो वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा. When you receive Jesus, you received life, you received eternity, you received healing, you received every blessing, because our greatest blessing, हमारी सबसे बड़ी blessing एक बड़ी कार, एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक बड़ा घर और रुपए और धन दौलत नहीं है. This is a very tiny part of the blessing. Our biggest blessing is Christ Jesus himself. स्वयं मसीह यीशु हमारी सबसे बड़ी blessing है. बोलो मैं मसीह के साथ स्वर्ग में चढ़ाया गया. सॉरी, क्रूस में चढ़ाया गया. स्वर्ग में भी चढ़ाए गए हो, थियोलॉजिकली सही है. ये शायद प्रभु ने उनके लिए बुलवाया है जिनको डाउट हो रहा था जाएंगे नहीं जाएंगे. बोलो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है. Hear this. What is Paul doing? Paul is not saying that he has lost himself as an individual. इसका मतलब ये नहीं कि जैसे बोले हम मसीह में समा गए तो अब आप हो ही नहीं कुछ. नहीं, you will remain who you are. Okay? मगर अब वो क्या कह रहा है? He's disconnecting himself from his ego. He's disconnecting himself from his strengths, from his victories. He's like, it's not about my abilities anymore. It's not about my failures anymore. It's about Christ. It's Christ who lives in me. अब ये मेरी अच्छी चीजों के बारे में और मेरी बुरी चीजों के, मैंने उससे डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को. अब मसीह जो मेरे अंदर रहता है. तो मैं आज अगर किसी को लगता है, कई लोग कहते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूं, मुझसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती. आपसे नहीं पढ़ी जाती ना, कोई बात नहीं. अब मसीह जो आपके अंदर रहता है उसके द्वारा उसको अलाउ करें, वो पढ़ेगा बाइबल आपके द्वारा. प्रार्थना नहीं कर सकते? बोलो प्रार्थना नहीं करी जाती. बोलो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता. अरे बोलो. मगर जो मसीह मेरे अंदर रहता है वो बहुत प्रार्थना कर सकता है. ओके, देखा एकदम ईगो आ गई थी. हैं ये क्या बोलते हैं? मैं पता है मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, दिखाऊं अपना फोन. Can you put Romans 8:3, रोमियो 8:3, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. ओके, रोमियो 8:3. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, क्या था? व्यवस्था हमें धर्मी नहीं बना सकती. उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में. What law could not do, God did by sending his son. जो व्यवस्था नहीं कर सकती थी वो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया. आप जानते हैं व्यवस्था परफेक्ट है, व्यवस्था खराब नहीं है. व्यवस्था अपना काम परफेक्ट. कैसे? व्यवस्था कैसी है? शीशे की तरह है. किसकी तरह है? शीशा आपको आपके चेहरे में जहां गंदगी है वो तो दिखा सकता है, मगर गंदगी को साफ नहीं कर सकता. लॉ इज लाइक अ मिरर. इट शोज यू योर फ्लॉज बट इट कैन नॉट फिक्स योर फ्लॉज. दैट्स व्हाई लॉ डज एन ऑसम जॉब. आमेन. व्यवस्था बहुत अच्छा काम करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था. लॉ इज अमेजिंग टू डिस्ट्रॉय सेल्फ राइचियसनेस व्हेन यूज्ड इट लॉफुली. क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी ठहराया नहीं जा सकता. मगर कैसे आप धर्मी ठहराए गए हो? हाँ, 2 मिनट और फिर वीजा की प्रार्थना कर रहे हैं, टेंशन मत लो आप. कैसे? सोचो ये आप मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. आप स्वर्ग के दरवाजों के बाहर खड़े हो. कहां खड़े हो? और अंदर से आवाज आती है, मेरे बेटे, मैं क्यों तुझे अंदर आने दूं? तो क्या बोलोगे आप? क्यों? प्रभु जी, मैं हर संडे चर्च जाता था, मैं राजमा चावल भी बांटता था, मैंने कुर्सियां भी साफ करी, मैंने दशवांश मिस नहीं किया कभी. प्रभु जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. मैंने खोलो दरवाजा, और अंदर से हो जाएगी गलत जवाब.
और आपके बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, आप बोले अरे ये क्या, आप उससे बात कर रहे हो पहले, जब तक आप करो कितने घंटे प्रार्थना करता हो? 2 घंटे 10 घंटे। फिर उसके लिए सवाल आएगा, वो कहेगा प्रभु क्योंकि मैंने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एंड द गेट्स विल बी वाइड ओपन। हालेलुया। इसका मतलब मैं किसी भी रीति से ये नहीं कह रहा कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं खुद घंटों प्रार्थना करता हूं, मगर मेरा धार्मिकता मेरी प्रार्थना पे नहीं निर्भर है। Prayer is powerful because I commune with my Father. I build relationship with my Father. I fast. हम लोगों ने 40 दिन उपवास किया था। हम लोग उपवास भी करेंगे, हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, हम all night prayers करते हैं, हम लोग एक पवित्र जीवन जिएंगे। These are the good works that salvation produces. But we will not depend on our good works. If we depend on our works, then our standing will not be solid. It will be like this. जिस दिन करी 8 घंटे प्रार्थना, आप कहोगे प्रभु जी आना जरा बात करनी उससे। और जिस दिन आपने मिस कर दी प्रेयर, ओके बस अभी आ रहा हूं जैसे आदम ने किया, वो छुप गया। मगर अगर हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर है तो वो अटल है। हालेलुया। योर स्टैंडिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर वर्क्स, इट्स डिपेंडेंट ऑन व्हाट क्राइस्ट जीसस हैज डन ऑन द क्रॉस। आमेन। हम लोग घंटों प्रार्थना करने वाली कलीसियां हैं और रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। आमेन। हम लोग देने वाली कलीसियां हैं, हम लोग उपवास करने वाली कलीसियां हैं, हम लोग पवित्रता में चलने वाले लोग हैं। Apart from all of that, still our righteousness is not on our works. It is only on the sacrifice of Jesus. Amen? Hallelujah. आइए खड़े हो जाएं। Okay, last verse बच गया है, तो खड़े रहें आप, क्योंकि मैं भी खड़ा हूं इतनी देर से। See, that's what many people believe, that in the end, when Jesus comes back, he will scan your life. And whether he will take you with him or he will not take you with him will depend upon your works. कि अंत में परमेश्वर आपके कर्मों को देखेगा कि तुझे मैं लेके जाऊंगा या नहीं। और जब हम ऐसा मानते हैं, हम क्रूस को क्या कर देते हैं? नलिफाई कर देते हैं। If in the end it will be about works, then why did Jesus sacrifice? What was the meaning of the sacrifice? क्या जरूरत पड़ी यीशु को? क्योंकि हर धर्म हमें यही तो सिखाता है। Every religion teaches. आप जानते हैं परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? परफेक्शन। क्या है परमेश्वर का स्टैंडर्ड? परफेक्शन। तो अगर आपको तराजू में भी रखा जाएगा ना, अंत में अगर तराजू में रहेगा तो प्रभु कहेगा ओके परफेक्शन, चलो। क्या? परफेक्शन। वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कभी शराब नहीं पी, कभी उसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, उसने कभी नॉन वेज नहीं खाया, कभी सिगरेट नहीं पी, सुबह 4 बजे उठा, चिड़ियों को दाना डाला, कुत्तों को खाना खिलाया, सब अच्छा काम किया। और जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और तराजू में बैठेगा, God will say no, because his standard is perfection. Can you put James 2:10? Because no matter how good a person is, चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर वो एक चूक कर दे अपनी लाइफ में, in his entire life, how many mistake? How many? Do you know Moses made one mistake? He disobeyed God once and he was denied entry into the promised land. That is a picture of the law. If you try to be justified by the law, अगर आप व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो तो बाइबल कहती है तुम अनुग्रह से गिर गए हो। क्योंकि सोचो, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के द्वारा व्यवस्था दी, अगर उसको एक गलती में नहीं अलाउ किया तो आप, do you think you can make it? If Moses could not, the one through whom God gave the law could not enter the promised land through the law. क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है। व्यवस्था क्या है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अपने माता पिता का आदर करो, सारी चीजें। एंड द 10 is a summary of 613 commandments. 613 आज्ञाएं हैं। कितनी? 613। तो वचन कह रहा है अगर आप पूरे जीवन में पूरी व्यवस्था को मानो, you obey the entire law to the T, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में। God considers if you break one law, one commandment, you have broken all 613। अगर एक भी चूक हो जाए व्यवस्था में तो 613 आज्ञाएं आपने तोड़ दी। And then Jesus said, if you look at a woman and you imagine adultery in your heart, you have done it. So now tell me, who stands before God in their works? कौन है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है अपनी धार्मिकता में? उत्तर है कोई भी नहीं। इसीलिए मसीह यीशु को हमारे लिए आना पड़ा। That's why there's so much confusion in the church from the gospel. We have gone back. हम वापस व्यवस्था में ले जा रहे हैं लोगों को। That's why many people are going back into the bondage. They have no assurance of the gospel. They don't have any confidence.
That's why when you say Jesus Christ is coming back, half of the church gets afraid. आप बोलो यीशु मसीह वापस आ रहा है, डर जाती है कलीसिया. And then in the morning they sing, Oh Lord, I love you. Jesus, I love you. Jesus is coming. Ah! कुछ तो दिक्कत है. अरे जिससे प्रेम करते हो, जब खबर सुनोगे वो आने वाला है तो नाचने लग जाओगे. Why will you be afraid? If, let me say, I'm about to say something very radical, okay? I know, बहुत प्यार मिलेगा मुझे इसके बाद. If you hear about the coming of Jesus and you get afraid, that means your eschatology or your understanding of the end times is messed up. The Spirit and the bride say, Come, Lord. Not so soon, Lord. Come, Lord. अगर यीशु के आने की जो खबर है वो आपको डरा देती है, तो आपकी जो समझ है उसके आने की वो खराब है. Because it is taught that he will tell many people that I never knew you. आप में से कितने लोग मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हुए हैं? Show me, if you really mean it. आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? आप में से कितने लोग मसीह के साथ एक हैं? You know, the 1 Corinthians 6:17 says he is joined to the Lord is one spirit with him. आप में से कितने लोग उसकी बॉडी हैं, उसका देह हैं? आप में से कितने लोग उसकी भेड़ हैं? यूहन्ना 10:27 वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वे मेरा शब्द सुनती हैं और वे मेरे पीछे हो लेती हैं. आगे 28 और मैं उन्हें और वे कभी अगर भेड़ हो तो नाश नहीं हो सकते. The problem is we don't believe the Bible as it is. We add, we have our own interpretations. I give them eternal life. They will never perish. I know my sheep. The problem is we have made theology out of parables. Jesus will say, I never knew you. कितने लोग माँ बाप हैं यहाँ पे? I know मैंने पहले बताया मगर फिर से आपको सिखाना जरूरी है. कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की शक्ल में आंख दिला के बोल सकते हैं ये कौन है? मैंने तो इसको कभी नहीं, I never knew this person. मैं कभी इसको नहीं जानता था. Anybody? If you do that, you'll be a liar. God is not a liar. Jesus did not say, I knew you once, I don't know you now. He said, I never knew you. But to his sheep he says, I know my sheep. I know my sheep. The mixture in the gospel has taken boldness away from so many believers. सोचो आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो. कहां बैठे हुए हो? तो आप मसीह के साथ बैठे हुए स्वर्गीय स्थानों में. थोड़े टाइम बाद मसीह आपकी तरफ देखा, और ये कौन है? कौन है? मैं तो नहीं पहचानता. कैसे आया भाई तू यहां पे? बता. Some of the things we believe are so foolish because we don't know the gospel. Do you know that Jesus, as I told you before, never ministered to born again people, new creation? He was ministering to arrogant Jews. But Paul ministered to believers. Paul wrote epistles. पौलुस ने जो पत्रियां लिखी वो मसीह नई सृष्टि के लिए थी. और उनके लिए वो क्या लिखता है? तुम मसीह में एक हो, मसीह के साथ संगी वारिस हो, मसीह के साथ प्रधानताओं के ऊपर बैठाए गए हो, मसीह के साथ एक देह हो, उसके शरीर का अंग हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो. Maybe we don't understand the context of what Jesus was saying. इनफैक्ट समझो इस बात को, अब ध्यान से मेरी बात सुना. मैं ये किसी को एनकरेज नहीं कर रहा, मगर जो वचन में लिखा है प्योरिटी से अगर आपको बताऊं, कुरिन्थ की कलीसिया में कई लोग थे जो तब भी विश्वास करने के बाद भी वेश्याओं के पास जा रहे थे. दे वर स्टिल गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट बिकॉज़ दे वर न्यू बिलीवर्स. देयर माइंड वर नॉट रिन्यूड. सो मसीह को विश्वास कर लिया मगर अब भी वेश्याओं के पास जा रहे हैं बिकॉज़ कुरिन्थ में बहुत ज्यादा ये सब होता था. लॉट ऑफ टेंपल प्रोस्टिट्यूशन. तो पौलुस क्या कह रहा है उनको? कैसे उनको पाप से बाहर निकालना चाह रहा है? कैन यू पुट द स्क्रिप्चर? पॉल सेज, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम एक वेश्या के पास जाते हो तो तुम एक मसीह को एक वेश्या से जोड़ते हो. He does not say that Christ will leave you. He said the Christ who lives in you, you are going and joining Christ to a prostitute. Man, that when I read that, it was like, what? It was like कि कोई सिगरेट पी रहा है तो रे तू नरक चला जाएगा. पौलुस कह रहा है क्या तू नहीं जानता जब तू अपने मुंह में वो सिगरेट लगाता है तो तू यीशु के मुंह में सिगरेट लगा रहा है. He's talking about your union with Christ. It's so strong and inseparable. क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है?
क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे. टॉक्स अबाउट सेक्सुअल इंटिमेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. आगे 17. और जो प्रभु की संगति में रहता है वो क्या होता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. But this, okay. There's another scripture where it says you're joining harlot to Christ. इस बात को समझना है आपको. सोचो आपके कमरे में प्रभु यीशु मसीह चलते हुए आया. ओके, इमेजिन करो प्रभु आपके कमरे में आया और आप सिगरेट पी रहे हो. आपने सिगरेट जलाई और प्रभु के होठों में सिगरेट रख दी. पौलुस कह रहा है वही है, जब तू अपने होठ में सिगरेट रख रहा है तो वो वही है कि तू यीशु के होठ में सिगरेट रख रहा है, क्योंकि तुम दोनों अब दो नहीं क्या हो, एक हो. That's what he's trying to teach us. That our union with Christ. How are we trying to make people holy? By putting fear in them. Jesus will reject you. Paul is saying no. That's not what I'm teaching. Paul says your union is so strong. Would you want to add a harlot to Christ? क्या तू मसीह के मुंह में सिगरेट लगाना चाहता है? क्या तू मसीह को बैठ के गंदी वेबसाइट दिखाना चाहता है? क्योंकि तू और मसीह अब क्या है? That's the mystery. Your union with Christ. आपका मसीह के साथ क्या हो गया अब आप दो नहीं वरन. Put 1 Corinthians 6. अच्छा ये 17 है. Okay. Paul is trying to teach the church. वो कह रहा है कि जब तू अब क्योंकि मसीह के साथ एक हो गया है, जब तू एक वैश्य के पास जाता है तो तू मसीह को वैश्य से जोड़ने की कोशिश कर. Amen. So we need to meditate on our union with Christ Jesus. हम जो मसीह के साथ क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं. बोलो मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं. What you cannot do in your own strength, Christ who lives in you, He can do it for you. जो आप अपने बल पे नहीं कर सकते, मसीह जो आपके अंदर रहता है, मसीह आपके द्वारा कर सकता है. I want you to see yourself. अपने आप को देखना शुरू करो, मैं अकेला नहीं हूं, मसीह मेरे अंदर रहता है. Put Colossians 1:27. वचन कहता है ये जो भेद की बात है, this mystery was hidden from ages and generations, but now has been revealed to us. Christ in us is the hope of glory. ये बात जो है ये क्या थी? ये परमेश्वर ने हम पर प्रकट करना चाहा, जो छुपी हुई थी. भाई अब्राहम को नहीं पता था, ये मूसा को नहीं पता था, एलिया को नहीं पता था. आज आपको और मुझे पता है कि वो महान परमेश्वर स्वर्गों में जो विराजमान है वो आज आपकी और मेरे अंदर रहता है. Christ in us is not the hope of destruction. He's the hope of glory. बयाना है. आप जानते हैं पवित्र आत्मा क्या है? बयाना. डील डन. परमेश्वर वो फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर नहीं कि आपसे बयाना लेके बाद में आपको रिजेक्ट कर देगा. आमेन. बयाना दिया है तो पूरी मिरास आपकी है. That's the beauty of the gospel. और ये समय है, अब मैं चाहता हूं, अब वो समय आ गया है भारत की कलीसिया के लिए, that we will be strengthened and established in the gospel of Jesus Christ of Nazareth. कि हम मसीह के सुसमाचार में बलवंत हो जाएं, जय पकड़ लें. Amen. Come on, let's just lift up your hands. Come on, let's just worship for some time.